When your training will be end, Prashanto, you will inform me at one time, huh? Okay. I will call you, sir. I will call you, sir. And now the all access has given you. You can mute, you can everything you can do. Okay. Okay, sir. No, sir. Sir, মুঝে স্যার আমার না দুটো নাম্বার আছে, প্রাশন্তকর ওই যে প্রাশন্তকর যেটা আছে না, যেটা শুধু পি লেখা আছে, সেটাই আমাকে কো-হোস্ট বানান। আমি ফোন থেকে আমি ইয়ে করতে পারছি না। নেই স্যার। ওকে give me 5 minutes guys, give me 5 minutes। হ্যালো প্রশান্ত। ইয়েস স্যার। তোমার যেটা প্রশান্ত কর পিকে লেখা আছে ওটাতে মাইক পাচ্ছে, ভিডিও পাচ্ছে, আর যেটা প্রশান্ত কর ওটাতে কোনো ভিডিও নেই, মাইক নেই, কিছু নেই। হ্যাঁ স্যার, স্যার वो जो স্যার যেটাই মাইক নেই বা ভিডিও নেই সেটাই আপনি ইয়ে করুন, আমাকে কো-হোস্ট বানান, কারণ কি ওইটা আমার কম্পিউটার, ওটা আমার ডেস্কটপ, ওখান থেকে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারবো। আর এইটা যেটা আছে, এই যেখানে মাইক পাচ্ছেন এবং ইয়ে স্ক্রিন পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে আমার ইয়ে ফোন থেকে আমি কথা বলতে পারি। দেখো, শেয়ার তুমি সবসময় করতে পারবে, যে কেউ তোমাকে, তাহলে আমি এখানে কে আছে, তন্ময় আছে তোমার সঙ্গে, তো তন্ময়কে আমি হয়ে বানিয়ে দিই, তন্ময় ব্যাপারটা তোমাকে হেল্প করতে পারবে। ওকে স্যার তন্ময়কে বানিয়ে দিন। তোমাকে যে কোনো সময়, মানে তুমি দেখো, তুমি হোস্ট না হলেও স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবে, তোমাকে অ্যাক্সেসটা চাইতে হবে। স্যার সেটা হয় না, হোস্ট ডিসেবল পার্টিসিপেট স্ক্রিন শেয়ারিং, শুধু আপনি শুধু আমাকে দিতে পারবেন। আমি অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি, ওটা শেয়ার, স্ক্রিন শেয়ারটাকে আমি করে দিচ্ছি। কেন? ওকে এটাকে আমি করেই দিচ্ছি, দাঁড়াও। ঠিক আছে। স্ক্রিন শেয়ার সব অপশন ওখানে সব করা যায় বাবা, সবই করা যায়। enable share screen, chat screen, hello, just এক মিনিট। আরে এখানে শেয়ার তো দেখছি, নিউ শেয়ার। আজকে রাতে কি হবে ডেভেলপমেন্ট? আজকে হবে, মানে আজকের থেকে ডেডিকেটেড চ্যানেল দেওয়া হবে তোমাদের পাইথনদের জন্য, আজকে আর ঘুমাবে না, যে তোমাদের জন্য সেপারেট চ্যানেল দেওয়া হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটা কাজ করছি, আমি ফর দ্য টাইমিং, এটা তোমরা স্ক্রিন শেয়ার কোনো অসুবিধা হলে আমাকে জানাবে ফোন করে। মনে হচ্ছে না তো কোনো অসুবিধা, আমি তোমাকে হোস্ট বানিয়ে দিচ্ছি, তন্ময়কে হোস্ট বানিয়ে দিচ্ছি। তন্ময়, ইয়েস স্যার আমি তোমাকে হোস্ট বানিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে আমি হোস্ট করছি, তুমি ওদেরকে যদি কোনো কাউকে অ্যাক্সেস দিতে হয় সবকিছু করবে। ওকে স্যার। Okay. When training will complete, inform me. Okay, you are now host. Okay sir. Okay. Thank you. Okay, Tanmay. Yes, Prashant. Yes. Am I going to host you, make you host, Prashant? Hello. Hello sir. Yes sir. नहीं तन्मय, मुझे तुम्हें स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन देना होगा, क्योंकि होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेट स्क्रीन शेयरिंग, तुम्हें मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देना पड़ेगा। Like Prashant, I have already make you host. हेलो प्रशांत, हेलो। हाँ बोलो। मैंने आपको होस्ट ये कर दिया है, मेक यू होस्ट। ठीक है। यस, थैंक यू। या श्योर। ओके, चलो। आज हम देखेंगे पांडास। ओके, मैंने जैसे लास्ट क्लास में कहा था, पांडास को आज हम कवर अप करेंगे। तो क्या होगा, आज पांडास को देखेंगे। पहले पांडास क्या करता है, पांडास क्या है, ये सब चीज मुझे थोड़ा जानना होगा, ठीक है। पांडास में मैं पहले एक चीज तुम लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। अच्छा, can you see my screen guys?
Yes, yes, yes. Yes, yes, ओके sir. ओके पहले पहले अच्छी तरह से ये सब समझ लो। पांडास हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पहले हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमें डेटा की जरूरत है, राइट। सर जैसे बोले थे, पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, हमें डेटा को कलेक्ट करना होगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, उसको डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट पे पुट करेंगे। तब ये टेबल फॉर्मेट का जो मिडिल का पोर्शन है, टेबल फॉर्मेट पे पुट करेंगे कैसे, और थोड़ा थोड़ा बाकी का कैसे काम करेंगे, जैसा कोई मिसिंग वैल्यू हो गया या कोई आउटलायर हो गया, इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे इससे, या टेबल का मान लो दो तुम्हारे पास टेबल है, उसको हम कैसे ऐड करेंगे, या दो कॉलम है उसको कैसे हम मार्च करेंगे। तो ये सब काम हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, ये जो लाइब्रेरी है पांडास, ये लाइब्रेरी के थ्रू से कर सकते हैं। ओके, ये हुआ मेरा फर्स्ट पॉइंट। तो पांडास में दो चीज है, एक है सीरीज, एक है डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम और सीरीज को अच्छी तरह से समझ लो। सीरीज क्या होता है, सीरीज होता है अ काइंड ऑफ एरे। एरे तो तुम जानते ही हो, जैसे यहाँ पर देख लो, ये है सीरीज, जहां पर क्या होगा, जहां पर तुम्हारा इसको कहते हैं हम इंडेक्स, 0 1 2 3, ये है इंडेक्स। और इसके अंदर क्या होगा, वैल्यूज होगा, 3 2 0 1, ये हो गया तुम्हारा वैल्यूज। तो हम इसे कहते हैं सीरीज। और डेटा फ्रेम कैसे कहते हैं, मान लो ये जो टेबुलर फॉर्मेट में है, ये हो गया तुम्हारा टेबल। तुम अगर सीरीज को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहो तो ये मान सकते हो तुम्हारा सीरीज हो गया। क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा सीरीज, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा एरे जैसे है। ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स 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 इंडेक्स, और ये हो गया तुम्हारा वैल्यूज। ठीक है, तो हम एक या दो ज्यादा के ज्यादा सीरीज या तीन सीरीज को कंबाइन करके हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सीरीज का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट बुक इज डेफिनेशन, वन डायमेंशन लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। तो क्या है, वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे, लेबल्ड मतलब ए के साथ 3 को मैच करना, बी के साथ -5 को मैच करना, 3 के साथ 7 को मैच करना, 4 के साथ डी के साथ 4 को मैच करना। ये क्या हो गया, तुम्हारा एरे हो गया। मतलब ये हो गया तुम्हारा एरे, और ये बन गया इंडेक्स के साथ एक लेबल्ड बना के मुझे क्या बनाना है, सीरीज बनाना है। ऐसे हम सीरीज बनाते हैं। चलो एक बार हम सीरीज कैसे दिखने में कैसे है, उसे हम देख लेते हैं। वन मिनट। ओके, इंपोर्ट, पहले हमें ये वाला कमेंट लिख लो। sir. यस, गुड आफ्टरनून। इंपोर्ट, Sorry for late, sir. no issue, pandas as pd and shift enter। तो मैंने क्या किया, पांडास का जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी में इंपोर्ट किया। मतलब जहां पर काम करेंगे वहां पर पांडास को लाइब्रेरी को इंपोर्ट पहले करना होगा। डन। एसपीडी का मतलब क्या है, एसपीडी का मतलब है तुम्हारा, मेरा नाम क्या है, प्राशुंतो। जैसा कोई भी तर्पण का नाम, मान लो कोई किसी का नाम है, कोई लड़की का नाम मान लो ऋतुश्री है, ठीक है, या प्रोसेनजीत है, किसी का नाम प्रोसेनजीत एक नाम है, ठीक है, उसको हम स्मॉल में क्या कैसे पुकारते हैं, प्रोसो। ऐसे पुकार सकते हैं, किसी का नाम है प्रकाश, उसको हम कैसे पुकारते हैं, प्रा। ऐसे हम डिफरेंट छोटे फॉर्म से पुकारते हैं। वैसे ही हम बार बार पांडास को नहीं यूज करके पीडी को यूज कर सकते हैं। हम इसका एग्जांपल तुम्हें देंगे। इसका बाद का क्या है, इसका बाद देख लो, यहाँ पर कैसे बना रहे हैं सीरीज को, एक वेरिएबल ले रहे हैं इक्वल टू पीडी, मतलब पांडास डॉट सीरीज, एस कैपिटल, सीरीज ब्रैकेट में 3, 5, 7, 4। ये पहले वाला जो लिस्ट जाएगा वो होगा हमारा वैल्यूज। उसके बाद हम इंडेक्स को करेंगे, इंडेक्स ए बी सी डी। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। चलो ये वाला चीज ही हम देख लेते एक बार, तो और भी हमारे पास क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है x।
x इक्वल टू क्या करना होगा, pd डॉट सीरीज ब्रैकेट, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमारा इंडेक्स को देना पड़ता है, मतलब उसके बाद हमारा वैल्यूज को देना पड़ता है। तो लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज डालेंगे 2, 5, 6, 9, ये हो गया मेरा वैल्यूज। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इंडेक्स को लिखेंगे, इंडेक्स इक्वल टू a कॉमा b, सॉरी b कॉमा c कॉमा d। हो गया, इसको हम रन करेंगे। कहां पर प्रॉब्लम है, pd सीरीज इंडेक्स a कॉमा b फॉलो किया पोजीशन सॉरी गाइस, यहाँ पर ब्रैकेट देना भूल गए। ब्रैकेट हुआ यहाँ पर क्लोज करना होगा और यहाँ पर टपल नहीं करके यहाँ पर लिस्ट करना होगा। अब इसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये यहाँ पर क्लियर है, क्या किए हमने, हमने ए से एक वेरिएबल लिए जिसके अंदर पीडी, इसको हम पीडी करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पीडी अगर नहीं करेंगे, हम सिर्फ पांडास लिखेंगे तो भी रन करेगा। यहाँ पर पीडी उठाते हैं, उसके बाद यहाँ पर पांडास कर देते हैं। সিরিজের কলাম নেম হয়, মানে সিরিজ তো এটা নাথিং বাট অ্যারে, ওটার কি কলাম নেম হয়? सीरीज में कलम नेम ऐसे तो नहीं होता, ठीक है, हाँ। मगर तुम वहां पर डिनोट कर सकते हो, क्योंकि वो तो एरे है, एरे का कोई हाँ, कलम हाँ। नेम होता है, तो ना, ना, इसका हाँ, कोई हाँ। कलम नेम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एसपीडी किए थे, वो हम एसपीडी नहीं भी यूज कर सकते, मगर हमें बार बार जहाँ पर पीडी यूज कर रहे थे वहां पर पांडास देना पड़ेगा, लाइब्रेरी को कॉल करना होगा। तो यहाँ पर एक बार कॉल करके देख लेते हैं। देखा, तो हम सिर्फ इतना बड़ा पांडास पांडास, अगर बाद में जाओगे साइकिट लर्न या स्टैट मॉडल, ये सारे सारे बड़ा बड़ा मॉडल है, इन सारे नाम को, इस सारे लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद डॉट करके सीरीज वाला मेथड जो है वो लिखेंगे, तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेट मतलब जो हमारा कोडिंग है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम पांडास को एज पीडी करते हैं। चलो इसको यहाँ पर एज पीडी जैसे था वैसा ही रहने देते हैं। उसके बाद रन करो और इसके बाद Hello, यस, your voice is not coming. नाउ इट्स ओके। Your network problem. Who is this? हेलो, नाउ इज इट ओके गाइस? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। শোনা Yes, yes, you are audible. আর ওটা 64 কেন, ইন 64? इंट इंट 64 है, मतलब ये है इंट डेटा टाइप, इंट मतलब है इंटीजर हाँ। टाइप, एंड 64 मतलब हाँ। 64 बिट्स, इसलिए हम इन डेटा टाइप इंट 64 लिखते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा ফ্লোটের টাইমে কি 32 হয়ে যাবে? फ्लोटे, ফ্লোটের টাইমে 32 হয়ে যাবে? तो फ्लोट 32, हाँ। ওকে। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये हो गया तुम्हारा सीरीज का प्रॉब्लम। अब देखते हैं डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम मतलब देखो, ये वाला है तुम्हारा डेटा फ्रेम, मतलब एक टैबुलर फॉर्मेट में होगा। पहले तो हम कहीं से भी डेटा को इंक्लूड नहीं लेते हैं, ठीक है, मतलब ना ही एक्सेल फाइल को लेते हैं, ना ही सीएसवी फाइल को लेते हैं, डेटाबेस से लेते हैं, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला जो प्रोग्राम है, डेटा फ्रेम क्या है, डेटा मतलब है टू डायमेंशनल लेवल डेटा स्ट्रक्चर विथ कलम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट टाइप। यहाँ पर देखो, इसे कहते हैं हम कलम और इसे कहते हैं हम रो। ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, इसे हम कहेंगे इंडेक्स। और यहाँ पर देखो, ये जो कलम है, ये है कलम नेम। क्या कलम नेम है? इसका नाम है कंट्री। उसके बाद क्या है? कैपिटल। उसके बाद क्या है? पॉपुलेशन। तो ये सारे चीज को जोड़कर हमें ये मिलता है एक डेटा टेबल। ये टेबुलर फॉर्मेट में है। तो हम नॉर्मल बाहर से डेटा को लेते हैं।
चलो मान लो एक ये है, तुम देख सकते हो आज डिक्शनरी के पोर्शन किए थे, तो वहां पर पहले में क्या था, पहले में था एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल वैल्यू था, एक की, ये है कंट्री, ये है की, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज था। ये ऐसे ही तुम यहाँ पर कंट्री, बेल्जियम, इंडिया, ब्राजील, ये है वैल्यूज। तुम मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हो, तुम कंट्री जो वेरिएबल है इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद आता है कैपिटल। तो कैपिटल ये भी एक की है, और इसका वैल्यूज क्या है, इसका वैल्यूज बहुत सारा वैल्यूज है जिसका नाम है ब्रसेल, न्यू दिल्ली एंड ब्रासिलिया। इसको हम दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। अब लेते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पर कुछ नंबर दिया गया है, तो एक है की और इसका मल्टीपल वैल्यू। तो ये कौन सा फॉर्मेट में है, ये एक डिक्शनरी का फॉर्मेट में है, और इसको हम क्या क्या कर रहे हैं, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं जिसका नाम है डेटा। तो और ये क्या है, ये डेटा फ्रेम है, इसलिए हम पीडी मतलब पंडास का लाइब्रेरी को फिर से यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर एक मेथड है, जिस मेथड के नाम है डेटा फ्रेम। और उसके अंदर किसको हम डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम मेथड क्या करता है, ये डेटा फ्रेम मेथड एक टेबल बनाता है, और ये टेबल कहां से डेटा को मिलता है, ये एक वेरिएबल से मिलता है, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है डेटा। उसके बाद सिर्फ यही खत्म नहीं हो रहा है, अगर तुम चाहो तो इसका कोई कॉलम नेम देना चाहते हो तो तुम यहाँ पर कॉलम नेम भी दे सकते हो। मान लो यहाँ पर दे दिया कॉलम नेम कंट्री, कैपिटल, पॉपुलेशन। अगर तुम चेंज करना चाहते हो इंडेक्स को, ये 1 2 3 नहीं देना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। चलो हम देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद जब सीरीज और डेटा फ्रेम का थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा, तब हम क्या देखेंगे, हम मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो तुम लोगों को भेज दूंगा। क्या क्या है यहाँ पर, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलम्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ तुम्हारा पांडास का सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो फंक्शन हमसे ज्यादा यूज होता है, वो सारे फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, बट वन बाय वन, ठीक है। होपफुली आज तो पूरा कंप्लीट, आई डोंट नो इतना फंक्शन है, ये फंक्शन अगर आज कंप्लीट हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो हम इस क्लास को नेक्स्ट टाइम भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। तो हम कहाँ थे, हम बनाएंगे एक डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है। ये मान लो वही जो एग्जांपल दिखाया है वही करेंगे। तो हम सिर्फ देखेंगे ये रन करके कैसे दिखा रहा है, और दो मॉडिफिकेशन करेंगे। एक है इंडेक्स का नंबर जो 1 2 3 है, उसको हम चेंज करके मे बी कोई भी इंडेक्स रख लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। डेटा इक्वल टू, इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, एक डिक्शनरी का फॉर्मेट। तो डिक्शनरी का अगर फॉर्मेट में जाएगा तो डिक्शनरी कैसा स्टार्ट होता है, वो तुम्हारा जो कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, उसके बाद की और वैल्यू पेयर को देना पड़ेगा। की मान लो चलो कोई नाम बोलो की का, मान लो वहां पर जैसा था फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स एप्पल, हाँ हम जरूर करेंगे, फ्रूट्स कर लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा की। उसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या क्या होगा, वैल्यूज मतलब कोई फ्रूट का नेम बोलो, जैसे तुम्हारा एप्पल हो गया, डन। उसके बाद मान लो तुम्हारा बनाना, बनाना, वेरी गुड, बनाना हो गया। उसके बाद मान लो तुम्हारा कोकोनट हो गया, ठीक है, मैंगो, चलो मैंगो ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। चलो मैंगोस 3, और एक दे देते हैं, मेरा फेवरेट मान लो कोकोनट, मुझे ये पसंद है ज्यादा। चलो उसके बाद ये तो हो गया एक सिर्फ कलम, ये मतलब एक सिर्फ कलम हो गया, मान सकते हो। उसके बाद हम सेकेंड कलम को करेंगे, फ्रूट्स के बाद मे बी उसका प्राइस लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे फिर से उसका क्या देना पड़ेगा, उसका की देना पड़ेगा, उसका नाम क्या देते हैं, प्राइस, ठीक है। उसके बाद अंदर डालते एक लिस्ट लिखना होगा क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है,
तो हमें लिस्ट के अंदर उसका वैल्यूज देना पड़ेगा। एप्पल मान लो 200 रुपए किलो, आई डोंट नो, मुझे इतना मार्केट में नहीं जाता। बनाना मान लो 50 रुपीज, ठीक है। उसके बाद मैंगो मान लो 40 रुपीज, अब समर है तो कोकोनट मान लो 20 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइस। और कोई एक कलम बोल दो जो हम लिख सकते हैं फ्रूट प्राइस के साथ, जो मुझे डेटा फ्रेम में दिखाना है। ठीक है, छोड़ दो, इतना ही अच्छा, इतना ही काफी है। नहीं, कलर की जरूरत नहीं है, इसको ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको रन करते हैं। क्या दिखा रहा है? प्राइस एप्पल, इनवैलिड सिंटैक्स, कहां पर इनवैलिड हो गया? हेलो सर। हेलो हेलो सर, आई एम शुभजीत सर। हाँ शुभजीत बोलो। Sorry for the late, sir. No, it's fine, I think, yeah. Because I have to do my cook for me. ओके, नो इशू, ठीक है, कोई बात नहीं। हम ज्यादा कुछ नहीं किए थे, हम थोड़ा पांडास को स्टार्ट किए थे, ज्यादा कुछ नहीं था यहाँ पर। हम आपको तुम्हें लास्ट में बोल देंगे, ठीक है। सिर्फ तुम देखो यहाँ Okay, पर यहाँ पर सीरीज और डेटा फ्रेम का बात हो रहा था। सीरीज मतलब तुम्हारा एरे, ठीक है। इट्स लाइक एरे, नॉट एरे, इट्स लाइक एरे। और ये जो डेटा फ्रेम का बात हो रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा वैल्यूज और की वैल्यूज पेयर। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे इसको डेटा फ्रेम में चेंज। तो हम क्या कर रहे हैं? डीएफ डेटा फ्रेम, ठीक है। तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर वो डेटा फ्रेम को ही पुट करना है ना, तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, डीएफ मान लो। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद मुझे क्या करना होगा? उसके बाद फिर से मुझे पांडास को कॉल करना होगा, दैट मीन पीडी। उसके अंदर एक फंक्शन है, जिस फंक्शन बोल सकते हो या मेथड बोल सकते हो, डेटा फ्रेम। ओके, डेटा फ्रेम हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या पास कराना है? इसके अंदर तुम्हें ये जो डेटा है, क्योंकि किसको हम फ्रेमिंग करेंगे, किसको हम टेबल में पुट करेंगे, जो डेटा हमारे पास है वही तो, उसको ही तो पुट करेंगे ना। तो उसके अंदर मुझे क्या देना होगा? डेटा को देना होगा। मान लो हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उसके बाद तुम्हें कलम, जो कलम होगा उस कलम नेम का नाम देना होगा। तो तुम्हें लिखना होगा कलम इक्वल टू, उसके बाद कलम का नाम, एक थर्ड ब्रैकेट पुट करो, लिस्ट, उसके बाद कलम्स नेम दे दो, मान लो फ्रूट। उसके बाद दे दो प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा कलम नेम। आप चेंज करना चाहते हो, इंडेक्स का नाम भी चेंज करना चाहते हो, तो इंडेक्स कर दो, इंडेक्स इक्वल टू, पहले नॉर्मल इंडेक्स से देखते हैं, उसके बाद हम इंडेक्स को जरूर चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कितना इंडेक्स है, कितना वैल्यूज है? 4 वैल्यूज है, दैट्स व्हाई 1, 2, 3, 4 डन। इसको हम क्या करेंगे? फिर से रन करेंगे। यहाँ पर कहीं एरर आ रहा है, चलो देख लेने दो कहां पर एरर आ रहा है। पीडी डेटा कॉलम फ्रूट एंड प्राइस इंडेक्स कॉलम, आई थिंक कॉलम का कोई ये स्पेलिंग भूल हुआ है, एक बार देख लेने दो। कॉलम का स्पेलिंग, डेटा फ्रेम कॉलम्स, सॉरी इंडेक्स कॉलम्स होगा, एस। थैंक यू। चलो अब आई थिंक ये You are not audible. हेलो सर। Sir, you are not audible. not available. Okay, hold a second. Now, স্যার কথা বলছেন আপনি? हेलो, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। PRICE प्राइस, फ्रूट्स प्राइस, ठीक है, प्राइस देखते हैं। ओके, अब तुम लोग देख पा रहे हो? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस?
Hello, Yes, sir, yes, sir. hello, Yes, Prashant yes, sir. yes. Hello, Yes, Hello. you are audible. hello, Prashant sir. Can you call Iman ma'am? Hello. Hello. Hello, sir. Hello. স্যার কোথায় রে? এই ভাই চন্দ্রশেখর, হ্যাঁ বল। বলছি স্টার্টিংটা কোথা থেকে হলো? ওই ডেটা ফ্রেম আর সিরিজটা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে আমি আগের তো দিন বুঝতেই যেগুলো পারলাম দেখালাম না। সেরকম। আমি তো ঠিক আছে, সেটা বুঝতেই নিয়ে পরে পারলাম না। কথা হবে। ঠিক আছে, লাস্টটা একবার দেখে নাও। हेलो last हेलो message गाइस। হবে। হ্যাঁ, हेलो हेलो गाइस। सर, कैन यू कॉल इमन मैम? हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हो गया मैम हो गया। मुझे कॉल किया। ओके ओके हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात कर लेता हूँ उसके उनके साथ। मैं Okay. अभी थोड़ा क्लास करा देता हूँ, उसके बाद क्लास कराने के बाद हम बात कर लेंगे। ओके तो ओके, एक्चुअली मैम इंस्ट्रक्ट मी। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके 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 ओके। अच्छा, आप सभी लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो ना? Yes, यस sir. सर। ओके चलो, यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा फंडा को समझते हैं। शुभजीत थोड़ा लेट में आया है, शुभजीत भी पहले वो समझ लो। ये कोई यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल चीज है। हम एक यहाँ पर क्या आउटपुट आया वो भूल जाओ। मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा ये जो डेटा है, ये डेटा को हमें ऐसा टेबल फॉर्मेट में पेस्ट कराना है, ठीक है? तो ये टेबुलर फॉर्मेट को ही हम कहेंगे पांडास में या पाइथन में डेटा फ्रेम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही है डेटा फ्रेम। और सीरीज क्या है? अगर ऐसे एरे वाला चीज आया तो उसे हम क्या कहेंगे? सीरीज। तो ये दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या किसका हेल्प चाहिए होगा? हमें पांडास का हेल्प चाहिए होगा। दैट्स व्हाई वी आर इंपोर्टिंग पांडास। ओके हेलो सर, गाइस, थोड़ा रुक जाओ, मेरा नेट का थोड़ा सर मेरा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। हाँ ठीक है, होपफुली यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? यस सर। ओके ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पांडास। ओके, सीरीज हो गया। सीरीज को हम कैसे बनाया ये पहले हम डिक्लेयर कर दिए हैं। अब देखते हैं और एक बार इसको हम रिकैपिचुलेट करते हैं, हम कैसे ये डेटा फ्रेम बनाए थे। तो हमें क्या चाहिए? ये डेटा फ्रेम के लिए हमें डेटा चाहिए, और वो डेटा हम कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? वो डेटा हमें एक डिक्शनरी से मिल रहा है। यहाँ पर देखो डिक्शनरी का की, और ये है पूरा की वैल्यूज जो पेयर है, की वैल्यूज पेयर। ये की है, की का नाम क्या है? फ्रूट। ये स्ट्रिंग है, दैट्स वाई हम एक कॉमा मतलब इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं। यहाँ पर है प्राइस, तो हम इसको अगेन इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं। ये हो गया की, और की का मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम एक लिस्ट लिए, उसके अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो, कोकोनट एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम डाल सकते हैं। और सेम एज प्राइस को भी हम 200, 500, 50, 40, 20 ये सब कुछ हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कॉमा देना पड़ा, तो ये बन गया मेरा एक डेटा या डेटा सेट मान लो। उस डेटा सेट को हम एक वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं जिसका नाम है डेटा। हो गया। अब क्या कहेंगे? इस डेटा से हम ऐसे टेबल बनाएंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे? हमें क्या करना होगा? पांडास को कॉल करना होगा। क्यों पीडी लिखा है? क्योंकि पांडास को हम शॉर्ट में हर जगह हम पांडास पांडास नहीं लिखेंगे, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पीडी। दैट्स व्हाई इंपोर्ट पांडास एज पीडी। डन। उसके बाद हम लिखे पांडास डॉट डेटा फ्रेम। तो पांडास लाइब्रेरी के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है डेटा फ्रेम। तो ये डेटा फ्रेम लिए, डेटा फ्रेम कौन सा चीज, क्या ये टेबल फॉर्मेट में जाएगा? कौन सा डेटा टेबल फॉर्मेट में जाएगा? थ्रू डेटा फ्रेम। ये डेटा वाला जो डेटा है वो जाएगा। सो हमें इसको अंदर डेटा लिखना ही है। और हम यहाँ पर कौन सा चीज को हम कॉलम बनाएंगे? ये फ्रूट्स को और प्राइस को। दैट्स वाई यहाँ पर लिखे फ्रूट्स और प्राइस। ठीक है। अब क्या है? इंडेक्स करना है। इंडेक्स मतलब यहाँ पर देख रहे हो ना 1 2 3 4, तो ये इंडेक्स करना है। तो इंडेक्स के लिए हम नंबर दे चुका है 1 2 3 4। हम चाहे तो एबीसीडी भी दे सकते हैं। तो एक बार एबीसीडी भी ट्राई कर लेते हैं। चलो इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर देकर पेस्ट करते हैं। इसके बाद शिफ्ट एंटर, इसके बाद यहाँ पर जाकर शिफ्ट एंटर, तो ये देखो इंडेक्स का नाम भी चेंज हो गया। अगर तुम्हें कुछ और भी देना है, कुछ और भी देना है तो तुम दे सकते हो। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या होता है डेटा फ्रेम और पांडास? Sir, हाँ बोलो। I have two questions. हाँ Sir, हाँ what बोलो is the बोलो। relation between data frame and series? What is the Relation between data frame and series. And series देखो is series in unit of data frame.
नहीं नहीं, देखो तुम अगर हर एक चीज को अकेले अकेले लोगे तो वो एक डेटा फ्रेम ही बन जाता है ना। तुम ये वाला मान लो एक सीरीज है, ये वाला जो चीज है ये मान लो एक सीरीज है, तुम सीरीज को 2 या 3 सीरीज को क्या कर सकते हो, मार्च करके तुम डेटा फ्रेम बना सकते हो, ठीक है। सीरीज तो मींस कॉलम। हाँ बोल सकते हो, सीरीज मींस कॉलम, ठीक है, ये तुम बोल सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज कैसे दिखेगा। इंडेक्स की देना ही जरूरी है कि इंडेक्स, ऑप्शनल? इंडेक्स हाँ तो इंडेक्स ऑप्शनल। इंडेक्स इंडेक्स ऑप्शनल है, तुम इसको हटा भी सकते हो। इसके बाद देखो क्या होता है, तुम यहाँ पर देख पाओगे इंडेक्सिंग यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। अगर तुम मान लो तुम्हारे पास एक डेटा है, स्कूल स्टूडेंट का डेटा, किसी का रोल नंबर क्या 1 से 0 से स्टार्ट हुआ है? मैं तो नहीं देखा। सबका नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई हमें ये इंडेक्स देंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं देंगे तो ठीक है, कोई बात तो नहीं, बाय चलो डिफॉल्ट मान ऐसा लेते हैं। ऐसा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, राइट। ओके बाय डिफॉल्ट हमारा 0 आ जाएगा, नहीं तो हमें क्या आएगा, हम इंडेक्स अगर दे देंगे, यहाँ पर तुम कुछ भी नाम भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते ठीक हो, है, कुछ भी समझ कर गए। सकते हो, ओके, ठीक है। ठीक तो है सर, ये थैंक हो यू। गया तुम्हारा बेसिक चीज। अब चलो pandas का बहुत सारा जो फंक्शन उसको हम दिखाते हैं। मैं ये वाला जो यहाँ पर सारा क्या है, सारा यहाँ पर तुम्हारा जो pandas का इम्पोर्टेंट मेथड्स है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, हम इसको तुम्हें भेज देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें डेली जरूरत होता है ये हम तुम्हें भेज देंगे pandas को। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तो मान लो तुम्हारे पास ऐसा डेटा नहीं है, तुम्हें डेटा को कहां से लेना पड़ता है, तुम्हें डेटा को लेना पड़ रहा है कोई CSV फाइल से। मतलब CSV फाइल कैसा फाइल है, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा चलो ये बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर I देते हैं। think Prashant, hello. हाँ बोलो। देख पा रहे हो तुम Like सभी लोग? CSV file, like कॉमा सेपरेटेड it's an फाइल, हाँ। Excel file, right? We are going to save that one नहीं as नहीं CSV. नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। ये दिखने Okay. में तो एक्सेल फाइल जैसा ही होगा, मगर तुम CSV फाइल कैसे बना पाओगे या कैसे कर पाओगे, मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो तुम्हारा फाइल नेम, उसके बाद लिखा है सेव एज टाइप। तो यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेट है। जैसा हमारा नॉर्मली डिफॉल्ट क्या रहता है, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक करके रहता है नॉर्मल। मतलब अगर तुम एक्सेल फाइल को कभी खोलोगे तो वो कैसे रहेगा, एक्सेल वर्कबुक। तो अगर एक्सेल वर्कबुक अगर ऐसे सेव रहेगा, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक बोलकर सेव रहेगा, तुम यहाँ पर ये वाला कमेंट तुम लिखोगे read.pd.read CSV, ये वाला अगर मेथड को तुम कॉल करोगे तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। पहले ही मैं बोल देता हूँ, तुम्हें 2 काम करना है। तुम ये मेथड यूज कर सकते हो pd.read excel, ये मेथड यूज कर सकते हो, या तुम हो सके तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर सेव एज टाइप को तुम्हें यहाँ पर CSV करना होगा। हाँ कोई क्वेश्चन है, बोलो बोलो। ऐसे कन्वर्ट करके उसके बाद CSV के इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। राइट, तुम ये भी कर सकते हो। तुम 2 काम कर सकते हो, तुम यहाँ से एक्सेल फाइल जो है उसको CSV में कन्वर्ट करके वहां पर pandas में पुट कर सकते हो, या वहां का pandas का ऑलरेडी एक मेथड है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मैंने कहाँ पर चले जा रहा है यार, हाँ यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, रीड एक्सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ है, जैसा तुम CSV फाइल को रीड करके वहां पर पुट कर सकते हो, तुम टेबल को पुट करके तुम कर सकते हो, एक्सेल फाइल को कर सकते हो। चलो मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। कंट्रोल V, ये डिपेंड करता है तुम्हारा डेटा कहाँ पर है। तुम्हें जो डेटा मिल रहा है वो CSV फॉर्मेट में है या तुम्हारा वो एक्सेल फॉर्मेट में है, ये डिपेंड करता है पूरा डेटा के ऊपर। इसके ऊपर तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, ओके। तुम अगर घर पे बनाना चाहते हो तो तुम सब कुछ ट्राई कर लो। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर फाइल नेम देना पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ पर फाइल नेम को दे देते हैं। मैंने कहाँ पर सेव किया था, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सेव कहाँ था। उसके बाद सॉरी यहाँ पर प्रॉपर्टीज जाते हैं, प्रॉपर्टीज जाकर लोकेशन मैंने यहाँ पर कंट्रोल C,
उसके बाद कंट्रोल V, इसके बाहर में 8 दे देता हूँ तो रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद डबल slash, फ्लैश होगा सर, हाँ डबल फ्लैश होगा शायद उसमें। नहीं, डबल स्लैश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रन कर जाएगा। अच्छा, एक बार देखना, इसका नेम कंट्रोल V, आई थिंक CSV। उसके बाद इसको पहले रन करके देखते हैं। आई थिंक मेरा स्लैश का कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसका ABC, ये इसको हम प्रिंट करेंगे। चलो देख पा रहे हो? जस्ट मतलब मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा था। मैं जैसे सुबह में बोला सर को, जैंगो का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये पांडास को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, जिस फॉर्म में मैं ऐसे कोई डेटा को पुट करूंगा, वो चले जाएगा डेटाबेस में, डेटाबेस से हम डेटा को फेच करेंगे पांडास से। या हम क्या कर सकते हैं, जैंगो का जो अंदर का जिंजा 2 जो टेम्पलेट है, उससे हेल्प से हम डेटा को शो कर देंगे। तो ये भी हो सकता है अगर हम पांडास को, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही ABC अल्फा बीटा गामा नान ऐसा भी कोई कर दिया था, जस्ट भूल जाओ क्या डेटा है इसके अंदर, मगर मैंने ऐसा डेटाबेस बनाया था। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको हम ऐसे प्रिंट करते हैं, रीड करते हैं। अगर मान लो तुम्हारा एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल भी तुम देखना चाहते हो क्या होता है कि नहीं, अगर CSV में एक्सेल फाइल दे दे तो क्या होता है? एरर दिखाएगा। हाँ जरूर, हाँ बोलो बोलो, 1 by 1 बोलो। सॉरी, हेलो, इट्स ओके सर, इट विल शो एरर। राइट राइट राइट, तो तुम्हें एरर दिखाएगा। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा इंपोर्ट कैसे कर सकते हो तुम डेटा फ्रेम से। ये यहाँ पर डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में तुम्हें दिखाया था। यहाँ पर जो एग्जांपल था, यहाँ पर जो डिक्शनरी था, ये डिक्शनरी का एग्जांपल यहाँ पर है। तुम क्लिपबोर्ड भी यूज कर सकते हो, तुम HTML से भी डेटा को उठा सकते हो, तुम JSON से भी डेटा को उठा सकते हो, तुम SQL से भी डेटा को उठा सकते हो, एक्सेल से भी होगा, टेबल से भी होगा। तो फर्स्ट पोर्शन डन, हम पांडास से डेटा को इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम करेंगे एक्सपोर्ट वाला जॉब, मतलब राइट टू अ CSV फाइल, DF to CSV, DF to Excel, मतलब राइट टू एन एक्सेल फाइल, मतलब तुम एक्सेल फाइल के अंदर राइट कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट वाला जो चीज है, ये हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमें डेटा को लेना है, हमें डेटा को देना नहीं है, ठीक है। तो हम इसका जॉब को अभी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इसको हम साइड में रखते हैं। मगर हम तुम्हें ये सारा जो चीज है, सारा मटेरियल है, तुम्हें हम दे देंगे। उसके बाद तुम अगर चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी नहीं लगेगा। उसके बाद क्रिएटिंग टेस्ट ऑब्जेक्ट। टेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब देखो यहाँ पर क्या है, pd.dataframe np.random.rand 20,5। इसका मतलब है क्या, 5 कॉलम्स एंड 20 रो ऑफ रैंडम फ्लोट्स। मगर मतलब क्या है, यहाँ पर अगर तुम करोगे तो यहाँ पर तो मेरा इतना डेटा नहीं है, यहाँ पर जो डेटा सेट लिया है, यहाँ पर इतना डेटा नहीं है, मगर इसको हम छोटे कलम करके दिखा सकते हैं। मगर पहले मुझे क्या होगा, वहां पर NP को करना होगा। NP मतलब क्या है, चलो तुम्हें ये भी दिखा देते हैं। NP मतलब है numpy। तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज NP, शॉर्ट फॉर्म में NP कहते हैं। उसके बाद इसको इंपोर्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, के बाद हम करेंगे इस चीज को करेंगे। चलो ये क्या हो रहा है, pd.dataframe np.random.rand 20,5, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये क्या है, pd मतलब पांडास है, और यहाँ पर np यूज कर रहे हैं। इसको अंदर इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रखता हूँ, जिसका नाम है मान लो कैपिटल B इक्वल टू, ये क्या कर रहा है, अच्छी तरह से देख लो। ये क्या कर रहा है, ये रैंडम रैंड, इसका मतलब है रैंडमली डेटा को ले रहा है।
रैंडमली डेटा को लेकर तुम्हें क्या बना रहा है, यहाँ पर 20, जो ये 20 है ये इंडेक्स नंबर है, और ये जो 5 है ये है तुम्हारा कलम नंबर। और ये क्या कर रहा है, पीडी से एक डेटा फ्रेम बना रहा है जहाँ पर डेटा नहीं है, मगर क्या कोई भी डेटा को, आर्बिट्ररी डेटा को ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पर रैंडम, अगर तुम इसको बार बार एग्जीक्यूट करोगे, ये मान लो पहले वाला नंबर देख लो 270343, अगर सेकेंड टाइम तुम एग्जीक्यूट करेगा ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो क्या है 0.270343, इसको पहले फिर से एक बार एग्जीक्यूट करो, इसको फिर से और एक बार एग्जीक्यूट करो, देखो एग्जीक्यूशन के बाद ये डेटा फिर से चेंज हो गया। तो बार बार अगर करोगे ये चेंज हो रहा है, क्यों? इसका यहाँ पर एक नाम है जिसका नाम है रैंडम, तो रैंडमली डेटा को चूज कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? Hello, hello. Second rand. What is the function of rand? RAND. ये रैंड ND. After the random हाँ। dot RAND. ये क्या कर रहा है? ये 20 और 5 का जो, हाँ एक एक करके बोलो एक बार। सर हम तर्पण। हाँ तर्पण बोलो। रैंडम का फंक्शन है, ठीक है, रैंडमली मेरे डेटा को शो कर रहा है, और रैंड का फंक्शन हाँ। क्या है? RAND, उसका फंक्शन क्या है? वो फ्लोटिंग करके रैंड ले रहा है, ओ, वो अच्छा। फ्लोटिंग करके रैंड ले रहा है। ये रैंड के अंदर देखो, अगर यहाँ पर देखें ये है रैंडम वैल्यू को ले रहा है, ठीक है? ये रैंडम वैल्यू कैसे ले रहा है, ये मेथड किसके अंदर है, ये इनपी के अंदर, मतलब नंबर के अंदर के है। और ये जो रैंड है, ये रैंड 2050, ये क्या है, रैंडम वैल्यू को ले रहा है, बार बार रैंडमली चेंज कर रहा है और फ्लोटिंग वैल्यूज को ले रहा है। दैट्स इट। इज इट हेलो क्लियर? सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। আচ্ছা বলতে 20,5 ওটা তো শেপ না, একটা ডেটা ফ্রেম বা একটা हाँ, এটা सेट, यस यस, ये सेप है। सेप मतलब क्या है, यहाँ पर 20 अगर देखोगे, यहाँ पर 20 देखोगे, यहाँ पर 20 क्या है, 20 तुम्हारा इंडेक्स है, मतलब जिसको कहते हैं हम 20 रोज है। और यहाँ पर 0 to 5 ये क्या है, ये कलम है, 5 कलम है। इज इट क्लियर? স্যার আর এই র্যান্ডম ভ্যালুটা কি কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ক্লকের উপরে, ইন্টারনাল ক্লক স্যার? मतलब हेलो, हाँ बोलो और हेलो। एक बार बोलो। हाँ बोलो और एक बार। हाँ मैं बोल रहा था कि ये रैंडम जो वैल्यू है रैंडमली हाँ। तो दिखाएगा, पर इसका वैल्यू इंटरनल क्लॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर ये रैंडम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे इसका इंटरनल आर्किटेक्चर सच में पता नहीं है। मैं ये सोचता रहता था पहले भी, मैं जब तुम्हारा एज का था, मैं सोचता रहता था ये रैंडमली कैसे ले रहा है। गाइस हेलो। हाँ बोलो। हाँ আচ্ছা बोलो। র্যান্ডমে একটা স্টেট থাকে, র্যান্ডম স্টেট। তো ওই র্যান্ডম স্টেটের উপর এটা নির্ভর করে যে কি রকম ধরনের আসছে। তো ওটা ওটা ডিফল্ট একটা স্টেট, একটা ভ্যালু থাকে, हाँ हाँ, वो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, मगर वो वैल्यू क्या है वो वही पूछ रहा है, कैसे ये डिफॉल्ट वैल्यू चूज होता है, वो हमें किसी को भी नहीं पता, ठीक है कैसा। हाँ गाइस, थोड़ा तुम एक काम कर सकते हो, जो अनम्यूट है तो वो थोड़ा म्यूट कर लो ना, तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक शुभंकर के फोन में हो रहा है। हेलो शुभंकर, अच्छा आ जाओ। हाँ अच्छा, पहले तुम लोग पहले थोड़ा म्यूट कर लो, मतलब म्यूट कर लो सब लोग। उसके बाद एक एक करके हैंड को राइज करो, मैं सबसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसा मुझे शुभंकर ने एक हैंड राइज किया था, शुभंकर तुम अनम्यूट करो और क्वेश्चन को पूछो पहले। না হয়ে গেছে, ওটাই তখন জিজ্ঞেস করছিলাম ওই স্টেপটা। ओके डन, ठीक है। हेलो। ओके हाँ, जब कोई क्वेश्चन पूछेगा प्लीज पहले राइज, तुम्हारा हैंड को राइज करो, एक ऑप्शन है हैंड राइज, उसके बाद क्वेश्चन करो, तो मुझे भी हेल्प होगा बहुत, ठीक है गाइज? चलो थैंक यू गाइज। चलो रेडमी का नाम तो मुझे पता नहीं है। हेलो। रेडमी, हाँ रेडमी बोलो। हेलो हाँ रेडमी बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। एनपी और डेटा में अगर मैं एनपी नहीं लिखता हूँ तो रन नहीं करेगा। सुनाई नहीं दिया, सॉरी। वो ब्रैकेट में अंदर है ना, वो ब्रैकेट नहीं काम करेगा यहाँ पर। तुम्हें हाँ एनपी को लेना पड़ेगा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ तुम्हें
एनपी क्यों यूज कर रहे हैं? एनपी नामपाई के बदले में हम एनपी यूज कर रहे हैं, मतलब नामपाई को नामपाई NUMPY ये लाइब्रेरी बार बार हमें यूज करना होगा, कॉल करना होगा, इसलिए नामपाई का छोटा करके एनपी हम कहकर यूज कर रहे हैं। अगर तुम एनपी नहीं लिखना चाहते हो, तुम कर सकते हो नामपाई, इधर में ले सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो नामपाई, और ये कम करेगा, मगर तुम्हें नामपाई को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रैंडम जो मेथड है वो नामपाई लाइब्रेरी के अंदर ही है, तभी वो काम करेगा। अगर तुम डिस्कवर करने जाओगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम डिस्कवर करना चाहोगे पूरा पांडास और नामपाई, तुम्हारा 1-2 हफ्ता गुजर जाएगा, बहुत सारा फंक्शन है। तो मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन और जो सबसे ज्यादा यूज इस्तेमाल होता है वो फंक्शन तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, pd.series ये क्या करता है, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम अ इटरेबल माई लिस्ट, ठीक है। तो एक लिस्ट है माई लिस्ट, उसके हेल्प से तुम्हें क्या करता है, एक सीरीज बनाता है। जैसे तुमने पहले भी देख चुके हो, यहाँ पर जब हम पहले लिस्ट बनाए थे या सीरीज बनाए थे, तो वैसे ही था, pd.series 2 5 6 9। अगर इंडेक्स तुम नहीं देना चाहते हो, अगर इंडेक्स को तुम मान लो हटा देते हो, तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको मान लो हटा दो, उसके बाद रन करो और एक बार, और इसको रन करो, देखो इंडेक्स चेंज हो जाएगा, 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। चलो, व्यूइंग और इंस्पेक्टिंग डेटा, आप क्या करेंगे, व्यू करेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेल गलत लिख दिया, सॉरी, कंट्रोल एस। तो व्यूइंग एंड इंस्पेक्टिंग डेटा, इंस्पेक्टिंग मतलब व्यू, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफरेंट एंगल से हम व्यू करेंगे। df.head इसके मतलब है पहले जो है, पहले का कुछ डेटा हम देखना चाहते हैं, इसके अंदर n है, n मतलब क्या है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर मान लो 10 दे दिया, तो पहले वाला 10 का जो डेटा है वो दिखाएगा। मान लो तुम क्या किए, तुम इसके अंदर 2 दे दिए, तो पहले वाला जो डेटा है वो 2 सिर्फ डेटा दिखाएगा। उसके बाद है df.tail, इसके अंदर है n, इसके मतलब क्या है, लास्ट का जो डेटा है वो दिखाएगा तुम्हें। चलो इसको भी एक बार ट्राई करते देखते हैं। और df.save ये क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब कितना हमारे पास रो और कॉलम है ये भी दिखाएगा। ये सारे चीज को हम एक बार करके ट्राई कर लेते हैं, तो हम क्या होगा, हमारे पास एक क्लियर थॉट आ जाएगा, जो हाँ हम ठीक कर रहे हैं। चलो, लास्ट वाला जो मैं चीज लिया था, बी को हम ट्राई करते हैं। बी को तुम देख लिए हो, इसको छोड़ते हैं। चलो, ये वाला एबीसी को हम ट्राई करते हैं। abc.head, उसके अंदर क्या देंगे, कितना रो देखना चाहते हैं, मान लो 5 देखना चाहते हैं, 5। इसको रन किए, देखिए कितना वाला रो था, सिर्फ लास्ट सिर्फ 5 रो दिखाया। क्लियर। तुम हेड को भी यूज कर, इसके बाद हेड हो गया, इसके बाद तुम टेल, मान लो टेल 5, मतलब लास्ट का जो 5 डेटा है वो सिर्फ लास्ट का 5 रो तुम्हें दिखाएगा। चलो ये देखो, क्योंकि देखो 6 5 4 3 एंड 2। क्लियर गाइस, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, होपफुली हो रहा है, क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं भूलना चाहते हो। यस यस सर, यस क्लियर हो रहा है। सॉरी, मेरा ही दोस्त था, तुम लोगों को सबको म्यूट करने के लिए बोला था, उसके बाद मैं ही बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हूँ। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दिखाया था, उसके बाद शेप। चलो शेप को भी एक बार देख लेते हैं। शेप, ओके, इसको अगर रन करेंगे, सॉरी, bracket, you cannot take the bracket. राइट। तो ये शेप क्या होगा, शेप होगा 5 और 7, मतलब यहाँ पर ए क्या था, यहाँ पर देखो कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 था। तो यहाँ पर 7 रोज एंड 5 कॉलम्स। Prashanto, हाँ हाँ yeah, hello, like Tanmay, I'm speaking. हाँ, Yeah, like when we are going to take the last 5 in tail, right? right. So, like we are going to use the head also for the first one. हाँ, हेड भी कर सकते हैं। हेड करेंगे तो पहले वाला 5 वैल्यू दिखाएगा।
But before that we have to describe the things, right? But the data set what we are going to create, what are the things it was there, like I can say you, give you example like whether it was null or not null. First of all we have to describe na, that one. After that we are going for tell and head, right? हाँ, पहले तो ये सब दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा सेट था, मतलब ये Yeah. वाला देखो, यहाँ पर मेरा एक डेटा सेट था, दैट्स वाई हाँ वही ये बोल रहा हूँ। ये डेटा सेट था, इसलिए मैं उसके ऊपर वो जो मेथड है वो सब यूज कर सकते हो, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा, मैं तुम्हारा आई थिंक क्वेश्चन को थोड़ा मतलब समझ नहीं पाया। तुम अगर थोड़ा और भी ब्रेक करके बोलोगे तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं हो सके तो और भी क्लियर कर सकता हूँ। बोलो। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे हम लोग एक डेटा सेट के बाद जो आपने हाँ यूज किया है अभी जो क्रिएट हाँ किया है, हाँ उसके बाद हम लोग लाइक डेटा में ये देखते हैं ना कि उसमें कौन सा वैल्यू रोज एंड कॉलम्स में खाली है, कौन सा खाली नहीं है, सो हाँ दैट हाँ लाइक हम लोग हाँ पहले उसको क्रिएट करेंगे, लाइक नल वैल्यू एंड नॉट नल वैल्यू, उसको एक तरह से पहले क्रिएट करें। हाँ। तो हाँ, देखो तुम अगर डेटा सेट करोगे, हाँ डेटा सेट बनाओगे, उसके बाद डेटा सेट को प्रिंट करोगे, जहां पर वो नल वैल्यू होगा वहां पर NaN लिखा होगा, ठीक है। तुम NaN को अगर नंबर होगा, यहाँ पर कोई नंबर होगा, तो मीन मीडियन या मोड से तुम इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। या तुम लैग्रेंजियन मीन भी यूज कर सकते हो, ये सब चीज से तुम कर सकते हो। मगर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, तुम अगर पहले 5 को डेटा देखना चाहते हेलो हेलो हो प्रशांत, तो हाँ हाँ या तो लाइक मेरे कहने का मतलब है कि वो अपने जो डेटा सेट पहले क्रिएट किया हुआ है उससे आप पहले नल और इजनल वैल्यू का हम लोग पहले निकालेंगे, जो है जो चीज जो रोज खाली है, उसके बाद हम लोग को हाँ उसको डिस्क्राइब करना है, राइट? हाँ जो चीज हम लोग को मिला हुआ है डेटा सेट से, उसके बाद हाँ हम लोग मतलब ये जो शेप निकालेंगे, फिर उसका जो लास्ट से वी आर गोइंग टू टेक द 5 एंड फ्रॉम द फर्स्ट आल्सो वी आर गोइंग टू टेक 5 बाय यूजिंग द हेड फंक्शन। तो मैं ये चीज हाँ। बोल रहा हूँ, आप क्या ऐसे रैंडम दिखा रहे हो क्या? मेरा कहने का मतलब है, नहीं मतलब जो नहीं, चीज हम लोग मैं हम जो दिखा रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। हम क्या दिखा रहे हैं, हम जैसे व्यू और इंस्पेक्टिंग डेटा करने के लिए हम पांडास का कौन सा चीज यूज कर सकते हैं, क्रिएटिंग और टेस्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए कौन सा चीज यूज कर रहे हैं, अगर कोई डेटा को इंपोर्ट करेंगे तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज मेथड को यूज कर रहे हैं, इसके बाद में आएगा कौन सा स्टेप में क्या करना होगा। पहले अच्छा तो ओके। पहले तो मैं ये सीख लूं मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मेरे पास क्या क्या औजार है, वेपन क्या क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मेरा एनिमी कितना दूर है। अगर बहुत दूर है तो कोई शॉटगन से तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारा बड़ा जो बड़ा बड़ा गन है वो यूज करेंगे। अगर बहुत क्लोज हुआ एनिमी मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, हाँ शॉटगन हाँ यूज हाँ करूंगा या नाइफ से स्टैप करूंगा वैसे। हाँ तो हाँ ये सब हाँ। दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे कौन सा टाइम में कौन सा यूज करेंगे, मतलब फ्लो को। ओके हाँ ओके ठीक ओके, है, श्योर श्योर। थैंक यू थैंक यू। चलो तब हम आगे तब जाते हैं। हाँ तब रिशेप वन या फिर क्वेश्चन आई हाँ डायगोनल बोलो ये सब बोलो यूज बोलो। करना पड़ेगा। सर फिर से रिशेप जुपिटर में जाए ना, डायगोनल आई ये सब एट यूज करना एग्जांपल हेलो पड़ेगा। हेलो जो गाइस, सर हेलो गाइस। एग्जांपल हाँ बोलो। आई एम तॉर्पन। हाँ बोलो। सर जुपिटर तर्पण। में जो अभी देखा रहे थे हेड में, हाँ हेड पे तो एक्सेप्ट रो दे रहे थे, कॉलम नहीं देने का कोई जरूरत नहीं। आगे यस 5 जो है तो नहीं नहीं, जब ये 5 क्यों लिखे हैं, हम लास्ट का जो 5 चीज है, 5 जो कलम रो है वो देखना चाहते हैं, कलम देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। और ठीक अगर है। मैं कॉलम ऐड करूंगा तो कॉलम लिमिटेड हो जाएगा, अगर 3 हाँ दूंगा तो आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये शो करेगा। यहाँ पर ये ऐसे नहीं काम करता है, तो मैं दिखा ओके देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है हम समझ गए, यहाँ पर नहीं काम करेगा ऐसा, अच्छा ठीक है। ठीक इसमें है सिर्फ रो ही देख पाओगे, ओके ठीक है। ठीक है चलो थैंक यू। ओके, चलो ये हो गया। यहाँ पर ये सारे चीज को तुम्हें भेज दूंगा। इन्फो मतलब है इंडेक्स, डेटा टाइप, मेमोरी इंफॉर्मेशन, ये सारे चीज दिखा देगा तुम्हें इन्फो में, ठीक है। इंडेक्स कौन सा इंडेक्स यूज करा, कहाँ से इंडेक्स यूज करा है, पूरा जो डेटा है वो दिखा देगा। यहाँ पर बहुत सारा एक लॉन्ग चार्ट भेजेगा तुम्हें। डीएफ डिस्क्राइब वो भी समरी, स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। तो ये भी तुम कर सकते हो। तो तुम्हें सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है, कंट्रोल सी, ऑल टैब, यहाँ पर तुम्हें पुट करना है कंट्रोल वी, यहाँ पर सिर्फ चेंज कर लेना है वेरिएबल का नाम ABC, इसको शिफ्ट एंटर। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा जो स्टैटिस्टिकल चीज है वो सारा दिखा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जब
तुम्हें बॉक्स प्लॉट पढ़ाएंगे। बॉक्स प्लॉट मतलब एक स्टैटिस्टिकल टर्म है बॉक्स प्लॉट, बहुत जल्दी हम वहां पर जाएंगे। बॉक्स प्लॉट पढ़ाएंगे तब तुम्हें बहुत अच्छी से समझ आएगा ये 20% का मतलब है, 25% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है, 75% का मतलब क्या है, मीन क्या है और मैक्स क्या है। अगर कोई बोलेगा 5 उसे क्या कहते हैं, रुको मेरा नाम ठीक आई थिंक नाम मुझे थोड़ा याद कर लेने दो। 5 मुझे 5 डेटा का जो मेरा पास जो डेटा सेट है उसका 5 सिर्फ वैल्यू दे दो, ठीक है, 5 कोर्स दे दो, तब हम कहेंगे ये 5 चीज मतलब मीन दे दो, ठीक है। उसके बाद 25%, 55% और तुम्हारा क्या हुआ 75% और मैक्स। इसे हम कहते हैं 5 नंबर समरी ऑफ डेटा। इसे हम क्या कहते हैं इन स्टैटिस्टिकल टर्म, इसे हम कहते हैं 5 नंबर समरी ऑफ डेटा। तो इस 5 नंबर समरी ऑफ डेटा में क्या पड़ता है, मिनिमम वैल्यू, 25% वैल्यू, 50%, 75 और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो वैल्यू। इज इट क्लियर? हम जब जाएंगे इसके अंदर और भी हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। नामपाई एंड पांडास के बीच में क्या बोले उसका डिफरेंस क्या है, मतलब? देखो नाम पर पांडास क्या करता है, नामपाई तो न्यूमेरिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। न्यूमेरिकल ऑपरेशन मतलब एरे से हम जो ऑपरेशन हम कर चुके हैं, तुम कंप्यूटर साइंस में भी देख चुके हो, हम नामपाई मतलब एरे से बहुत सारा ऑपरेशन किए हैं। या कंप्यूटर जब तुम मैथमेटिक्स किए हो तब एरे मतलब क्या है, 2D एरे या 1D एरे मतलब क्या है, एक ऑलमोस्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है, हाँ मैट्रिक्स। जिसका रैंक है 0 राइट। यस। 1 मतलब जिसका रैंक है 1 1 या 1 0 या तुम जो भी कर सकते हो 2 into 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो सारा मैट्रिक्स का ऑपरेशन हम क्या कहां से कर सकते हैं, हम नंपाई से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ओके। बाकी रहा पांडास। पांडास क्या करता है, ये डेटा फ्रेम का बहुत सारा काम करता है। डेटा फ्रेम मतलब ये जो फ्रेमिंग वाला है, जो टेबल है, टेबल का अंदर कौन सा वैल्यू नहीं है, टेबल के अंदर मान लो सारे जो बॉक्स है मतलब सारे जो यूनिट है वो सारे यूनिट नंबर से भरा हुआ है, 1 2 3 4, वो सारे नंबर को मैं डबल करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मान लो तब कोई जितना एक डेटा है उतना डेटा को लेके मैं पूरा ऑपरेट कर सकता हूँ। राइट, मगर वो टेबुलर फॉर्मेट में ही होगा, सिर्फ ये टेबल फॉर्मेट में टेबल ही होगा। फॉर्मेट में होगा। ओके ओके हाँ ओके ठीक है, ओके। अब क्लियर? ओके चलो। एकदम। हाँ हाँ हम आगे बढ़ते हैं ना। डिस्क्राइब हो गया। इज वैल्यूज काउंट ड्रॉप ना फॉल्स, ये क्या होगा, व्यू यूनिक वैल्यूज एंड काउंट्स। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये कब यूज करेंगे, माने हम करेंगे, यहाँ पर एस दिखा रहा है मतलब है एस मतलब सीरीज के टाइम में ही हम यूज कर सकते हैं। जहां पर तुम देखोगे डीएफ दिया है मतलब डेटा फ्रेम है, जहां पर देखोगे यहाँ पर एस है इसके मतलब है सीरीज है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल का नाम है। यहाँ पर पीडी देख रहे हो, पीडी के मतलब पांडास है, और ये है डेटा, डीएफ मतलब डेटा फ्रेम जो वेरिएबल लिए थे उस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो तुम जब करोगे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके करना, ठीक है, जब दूंगा मैं ये। उसके बाद देखो df मतलब डेटा फ्रेम जो वेरिएबल लिए थे जिसके अंदर मेरा वैल्यू था, अप्लाई pd.series.value counts माने यूनिक वैल्यूज एंड काउंट्स फॉर ऑल कॉलम्स। मतलब ये वाला क्या होगा, यूनिक वैल्यूज एंड काउंट्स फॉर ऑल कॉलम्स। मतलब तुम ये वाला करके देख सकते हो, कंट्रोल सी ऑल्ट टैब कंट्रोल वी, इसके ऊपर क्या करेंगे ए बी सी। ये वाला तो प्रॉब्लम आ जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो सारे काउंट वैल्यू, मतलब यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो डेटा था कैसे डेटा था, ऐसे डेटा था, बीटा गामा इप्सिलॉन डेल्टा प्रास ऐसे करके जो डेटा था वो सारे डेटा मेरा कैसे रह गया, ऐसे आ गया, कॉर मून प्रास 140 सारे डेटा को इधर ला लिया। और इसके थ्रू में मुझे दिखाया कहाँ पर कौन सा नंबर है। तो ये वाला जो चीज है ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉर कितना बार रिपीट हो रहा है, कॉर रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और कहां पर रिपीट हो रहा है, लास्ट नेम में।
समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाहता हूँ? ABC ये वाला जो चीज है ये कितना बार रिपीट हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है 4 बार। कहाँ पर रिपीट हो रहा है? लास्ट नेम में। अगर फर्स्ट नेम में ABC रहता तो यहाँ पर दिखा देता, अगर कॉन्टेक्ट में ABC रहता यहाँ पर दिखा देता, अगर ईमेल में ABC रहता तो यहाँ पर दिखा देता, और कितना बार रिपीट होता वो भी हमें दिखा देता। इज इट क्लियर? Sir, sorry, last time can you repeat what the things you said about the apply and PD series value? हाँ हाँ, मैं और एक बार बोलता हूँ, ठीक है चलो। यहाँ पर देखो df.apply pd series value counts मतलब क्या है? ये काउंट करेगा, ये जो वैल्यू काउंट्स है मतलब काउंट करेगा, मतलब इसके अंदर जो यूनिक डेटा है ये सारे यूनिक डेटा है। यहाँ पर अगर जाओगे तो ये सारे यूनिक डेटा है, बीटा, गामा, इप्सिलॉन, डेल्टा, पास, एबीसी, कॉर, ये सारे यूनिक डेटा है। ये यूनिक डेटा कितना बार रिपीट हो रहा है? एबीसी कितना बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। ज्यादा हो सकता था अगर यहाँ पर फर्स्ट नाम में भी 2 बार रहा, कॉन्टेक्ट में भी एबीसी 2 बार रहा, ईमेल में भी 2 बार रहा, तो टोटल हो रहा है 4 + 2 + 2 + 2, यहाँ पर कितना हो रहा है? 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मगर यहाँ पर दिखा देगा कॉन्टेक्ट एक कलम के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार रिपीट हो रहा है। क्लियर अभी? Yes, sir. Yes, sir. And Okay, it is fine. showing the position. The first name में कितना बार होगा, last name में कितना हो रहा है? राइट। हर एक कलम में कोई यूनिक वैल्यू कितना बार रिपीट हो रहा है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद सिलेक्शन मतलब कोई भी सिलेक्ट करना हो, मतलब डेटा के अंदर जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर जो वैल्यूज है उसको अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो देख लो यहाँ पर df कोल रिटर्न कलम विद द लेवल कोल एज सीरीज, मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, उसके अंदर में एक सिर्फ एक अगर कलम को मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, एक अगर कलम को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ तो ये वाला चीज यूज कर सकते हो। अगर 2 कलम को करना चाहता हो तो तुम 2 कलम को यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं एक बार। मान लो यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, abc डॉट मान लो कोल, इसके बाद कलम नेम देना पड़ेगा, तो कलम नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मान लो लास्ट नेम को दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल सी ऑल टैब, कहाँ पर आ गया सर, दे दिया। कंट्रोल बी। और ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा सीरीज के मतलब सीरीज जैसा फॉर्मेट में। अगर तुम 2 को दिखाना चाहता हो, मगर मान लो ये कॉन्टेक्ट को भी तुम दिखाना चाहते हो, कंट्रोल सी, नीचे जाओ, इसके अंदर कॉमा, कंट्रोल बी, इसके बाद प्रिंट कर। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे डबल ब्रैकेट देना होगा, ये तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर? देख पा रहे हो? मतलब एबीसी जो मेरे पास डेटा टेबल था वहां से मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 कलम को लेना चाहता हूँ और उसके ऊपर कुछ काम कराना चाहता हूँ। अगर 1 कलम लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर 2 कलम लूंगा वो टेबुलर फॉर्मेट में रहेगा। इसको मैं किसी और एक वेरिएबल के अंदर पुट कर सकता हूँ, इस वेरिएबल के अंदर पुट करके मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। हाँ, बोलो। एबीसी या टेबल सेट का नाम है क्या? नहीं, एबीसी कोई टेबल का नाम नहीं है। एबीसी, ये जो एबीसी डाला था, ये जो एबीसी था, मेरा ये नाम यहाँ पर, चलो यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया था। मेरा ये गलत है, मैं जानता ना नहीं था यहाँ पर, और एक लास्ट नेम जो है यहाँ पर एबीसी रहेगा। मैं पूरा भूल गया था। तुम यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो पूरा चीज को
कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हुए वैल लिखते हैं, वैल, यहाँ पर भी चेंज करके वैल लिख लेते हैं, वैल, वैल। उसके बाद नीचे एकदम चले जाओ, यहाँ पर भी वैल लिख लेते हैं, तो बहुत हेल्प हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ठीक है, हो गया, समझ आ गया? ओके 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 ठीक है, चलो यहाँ पर सिलेक्शन में भी तुम आईलॉक, यहाँ पर कॉलम अगर 2 कॉलम होगा तो ऐसे कर सकते हो, एस डॉट आईलॉक। एस मतलब क्या है, सीरीज के लिए आईलॉक कैसे यूज करेगा, आईलॉक माने सिलेक्शन बाय पोजीशन। पोजीशन मतलब इंडेक्स जैसा पोजीशन है, ऐसा ही पोजीशन। अगर तुम डेटा फ्रेम को देखोगे, ये भी तो एक एरे है ना, अगर तुम देखोगे ये कैसा एरे है, 1 2 3, मतलब यहाँ पर 2 है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम 7 क्रॉस 2 हो गया। हेलो, ये 7 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसका भी तो एक पोजीशन होगा। इसका क्या पोजीशन होगा, इसका पोजीशन होगा 3,1, राइट। इसका क्या पोजीशन होगा, इसका पोजीशन होगा 5,2, ठीक है, ऐसा 5,2। तो ऐसा सबका पोजीशन होता है। तो अगर पोजीशन से हम क्या करना चाहते हैं, क्या कोई नंबर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं एस लॉक, ये आई लॉक है, सिलेक्शन बाय पोजीशन। अगर एस डॉट लॉक इंडेक्स 1 मतलब सिलेक्शन बाय इंडेक्स, ये पोजीशन से सिलेक्ट करेगा, ये इंडेक्स से सिलेक्ट करेगा। हम इसको, ये सीरीज में है, ये सीरीज को हम नहीं दिखाते, पहले हम इसको दिखा देते। चलो ये क्या कहते हैं, df डॉट आई लॉक 0,2, ये फर्स्ट रो को पूरा सिलेक्ट कर देगा। df आई लॉक 0,0 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, इसको हम देख लेते तो और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कंट्रोल V, इसको हम वैल कर देते हैं। यहाँ पर देखो तो क्या आया, आईडी, तो यहाँ पर सब कुछ तुम्हें दिखा देगा। आईडी क्या है, नन है। फर्स्ट नेम क्या था, बीटा था। लास्ट नेम एबीसी, कॉन्टैक्ट 12 एंड ईमेल क्या होगा, a@k.l। तो यहाँ पर देखोगे अगर क्या ये सिलेक्ट कर रहा है, पूरा पहले वाला जो पूरा रो है वो पूरा रो को सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जाओ, सॉरी डेटा, ये देखोगे तो ये पूरा रो को सिलेक्ट कर रहा है। तो तुम यहाँ से तुम गेम भी खेल सकते हो, यहाँ पर कितना से कितना सिलेक्ट करना है ये तुम भी बोल सकते हो। यहाँ 0 से 0 इंडेक्स से इसका इंडेक्स पोजीशन लिख सकते हो। ये तो पूरा 0 इंडेक्स हो गया। अब तुम मान लो आईलॉक से तुम ऐसे काम कर रहे हो 0,3 और यहाँ पर दे रहे हो 5,3, उसके बाद तुम इसको रन कर, सॉरी ये देखना पड़ेगा, too many indexes, अच्छा सॉरी, means I can say, Prashanto. हाँ Yeah, I can say means it will just like doing iLog, it will just create the panda series, right? When you are taking the row and column data frame pandas at a time, and it will take the multiple rows as we are going see. It was selected at a time, right? हाँ हाँ हाँ, तुम ये बोल सकते हो, ठीक है, तुम ये बोल सकते हो। और ये आईलॉक में यहाँ पर 12 क्यों दिखाया, ये है यहाँ पर देखो वैल आईलॉक 0,3, मतलब यहाँ पर अगर जाओगे 0 है ये, सॉरी यहाँ पर अगर जाओगे बोलो तो ये हुआ तुम्हारा 0 इंडेक्स। 3 मतलब 1 2 3, ये वाला जो पोजीशन है इसका पोजीशन का जो चीज है वो तुम्हें दिखा देगा, मतलब 12 का वैल्यू, दैट्स व्हाई यहाँ पर 12 का वैल्यू दिखा देगा। या वही बोल रहा हूँ ना, मतलब आईलॉग का लेगा कॉलम्स का, एज वेल एज लॉग भी एक रहता है ना जो रोज को डिफाइन करता है। राइट रोज को डिफाइन करता है। तो तुम्हें अगर वैसे करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले तुम्हें इस2 देना पड़ेगा, उसके बाद तुम रोज को डिफाइन हाँ हाँ, तो आई नो दैट वन। Sir, what is the difference lock and iLock?
तो लॉक होगा तुम्हारा लॉक हो गया तुम्हारा पोजीशन का नंबर देना पड़ता है, ठीक है। आई लॉक हो गया तुम्हारा पोजीशन का नंबर देता है, और वहां पर क्या देना पड़ता है, इंडेक्स का पोजीशन। मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। तुम लॉक फंक्शन को कहां पर यूज कर सकते हो, तुम सीरीज में यूज कर सकते हो, मगर आई लॉक को कहां पर यूज करना होगा, ऑल टाइम के कहां पर यूज करना होगा, तुम्हें डेटा फ्रेम में ही यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है तुम्हारा दो की ये तो 2 डायमेंशन एरे है, ये मैट्रिक्स है, जैसे 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो वहां पर 2 पोजीशन रहता है, एक 0 1 1 2। अगर मैट्रिक्स तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ऐसे मिल जाएगा तुम्हें। इज इट तो क्लियर? हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई लोग को एक पर्टिकुलर पोजीशन इंडेक्स पे यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम एकदम परफेक्ट। तुम रो एंड कॉलम। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है, ये है डेटा क्लीनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। डेटा क्लीनिंग में क्या हो रहा है, df.columns तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर डेटा को क्लीन कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, ये पोर्शन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। मेरे पास डेटा सेट अगर होता तो मैं दिखा देता, चलो मैं वो भी बोल देता हूँ। df.columns मतलब कॉलम्स का अगर रीनेम करना होगा, अगर कॉलम्स का नाम जो है वहां पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये करना होगा, तो तुम्हें ये वाला वेरिएबल तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई थिंक इसका करने की जरूरत नहीं है, या बाद में दिखाएंगे। pd.isNull check for the null value return boolean array। मतलब जहां पर नल वैल्यू होगा, यहाँ पर देख ही सकते हो आईडी में सभी नल वैल्यू है, वो नल वैल्यू को चेक करेगा, तुम्हें रिटर्न कर देगा। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कैसे दिखाता है। तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है val please mute yourself. equal to pd.isNull, ठीक है, हो गया। इसको बाद रिक्वायर पोजीशन आर्गुमेंट, अच्छा आईडी में दिखते हैं, सॉरी आईडी। इसके बाद हम val1 को प्रिंट करते हैं। ये क्या है, isNull मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्या दिया था, इसके अंदर क्या है, आईडी है। आईडी मतलब यहाँ पर अगर जाओगे एकदम ऊपर में, आईडी के अंदर NA नॉट अवेलेबल, NA तो यहाँ पर नल वैल्यूज को दिखाता है। तो यहाँ पर PD उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है isNull, उसके अंदर क्या पास किया, आर्गुमेंट पास किया जिसका नाम है id, और उसका सारा वैल्यू को val1 में चिपका दिया। तो यहाँ पर वैल्यू 1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चेक फॉर नल वैल्यूज रिटर्न बूलियन एरे। तो ये बूलियन एरे रिटर्न करेगा, मगर यहाँ पर थोड़ा बूलियन एरे नहीं दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। लेट मी चेक वन मोर थिंग, जस्ट फर्स्ट name saved false think चलो इसको मुझे एक बार देख लेने दो, क्यों ये बूलियन एरे ऐसे नहीं आ रहा है, तो मुझे एक बार चेक करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बोल दूंगा। pd नॉट नल ऑपोजिट ऑफ pd इज नल, ठीक है। नॉट नल मतलब यहाँ पर कोई नल वैल्यू है कि नहीं, ये वाला चेक करने के लिए ड्रॉप ऑल रोज दैट कंटेन। हाँ हाँ সেটা পিটি হবে হয় ডিএফ হবে df.isNull df মানে কোন যেটা ফ্রেমের উপর হবে, যেটা ফ্রেমের। अच्छा ठीक, थैंक यू, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। जैसे मेरा वैल है, वैल के ऊपर अगर isNull को दे दे, उसके अंदर तो मुझे एक आर्गुमेंट पास कराना है। तो आर्गुमेंट है मान लो आईडी, क्योंकि ये पूरा नल वैल्यू से बड़ा हुआ है। उसके बाद नहीं, ये ऐसा नहीं लेगा, না করলে হবে, ভেতরে কিছু না দিলেও এমনি চলে আসবে, অটোমেটিক চলে আসবে, মানে সব করাই দেখিয়ে দেবে আপনি। হ্যাঁ थैंक यू फाइन, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो यहाँ पर दिखा रहा है, अर्जुमन हैंड को रेज किया है। अर्जुमन बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था डॉट डेटा सेट तो एक्सेल में तो सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेल का तो एक लिमिटेशन है।
रो और कॉलम। अगर उससे हम लोग का डेटा एक्सीड हो गया तो हम लोग कैसे उसको लेके मैनिपुलेट करेंगे, हैंडल करेंगे? मतलब समझ नहीं आया, और एक बार बोलोगे? जैसे मेरे पास एक डेटा सेट है, वो हाँ। छोटा है, एक्सेल के अंदर फिट हो गया। हम्म। अगर उससे भी बड़ा, क्योंकि एक्सेल का भी तो एक लिमिटेशन है रोज एंड कॉलम्स का, उससे ज्यादा तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो उसको हैंडल, अगर उससे भी ज्यादा मेरे पास डेटा है, तो उसको हाँ मुझको ऑपरेटिंग करना है, तो मैं हाँ कैसे हाँ उसको हाँ हैंडल हाँ करूँ? हाँ, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें दोनों एक्सेल को लेना होगा, ठीक है। तुम्हें दो एक्सेल को क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, तुम्हें वो डेटा फ्रेम बनाना होगा, ठीक है। डेटा फ्रेम हो जाने के बाद, डेटा फ्रेम बन जाने के बाद उन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। हम अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सारे ऑपरेशन है वो हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखो ज्वाइन और कंबाइन है, यहाँ पर ज्वाइन हम कंबाइन में हम जब जाएंगे तब यहाँ पर कैसे ज्वाइन करते, कैसे अपेंड करते, कैसे कॉन्कैट करते, वो सब हमें मिल जाएगा। अगर दो डेटा सेट सिमिलर टाइप का है, कलम सेम है, सिर्फ क्या है मेरा डेटा जो है वो फिनिश नहीं हुआ इसलिए सेकेंड डेटा सेट यूज किए, तो उसके लिए अलग चीज यूज करेंगे, कॉन्कैट यूज करेंगे, ठीक है। अगर मेरा दो डेटा सेट ऐसा है, मेरे पास एक है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन नंबर, और मेरे पास और एक है स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल आईडी। अगर ऐसे कोई डेटा सेट मिलेगा, इसको हम अगर कंबाइन करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, राइट। तो तब के लिए हमें स्टूडेंट को कॉमन लेना होगा, स्टूडेंट नेम को कॉमन लेना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसको मर्ज करना होगा उसके साथ। तो यहाँ पर हम ज्वाइनिंग एंड कंबाइन जब पढ़ेंगे तब यहाँ पर मिल जाएगा। मैं तुम्हें आज क्लास में आज বলো 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 মানে স্যার দুটো এক্সেল ফাইল একসাথে কম্বাইন হয়ে গিয়ে একটা হিসাবে पहले उसको एक्सेल फाइल से भूल जाओ, पहले उसे एक्सेल फाइल से तुम्हें डेटा फ्रेम में लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, वो डेटा फ्रेम में आने के बाद तुम उसे ज्वाइन कंबाइन जो भी चाहे तुम कर सकते हो। सर ये बोल रहा है कि ये जॉइन कंबाइन ये सब तो मैं माइस्क्यूएल में भी कर सकता हूँ सर। तो वो कह रहा है वो एक्सेल फाइल है, तुम्हारे पास माई एसक्यूएल है, डन, वेरी गुड। अगर कोई कंपनी के पास डेटा को, जैसा हमारा कंपनी माई एसक्यूएल नहीं यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं या तुम ज्वाइन किए, वो डेटा को माई एसक्यूएल में नहीं डाल रहा है, वो कहाँ पर डाल रहा है, वो एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा है, तो वो एक्सेल से काम कर रहा है। तो ऐसे वो बोल रहा है 2 या 3 एक्सेल फाइल मेरे पास जनरेट होकर पड़ गया, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। माई एसक्यूएल कंपनी यूज कर रहा है तो वेरी गुड, वेरी गुड। वो तो कोई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फेस करेंगे, मगर पहले हम देख लेते हैं और जो चीज है उसको हम थोड़े थोड़े देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि 4 बजे तक तुम्हारा क्लास है, तो जितना जल्दी हो सके इसको खत्म कर लेते, उसके बाद तुम्हें सेंड कर देते, क्योंकि 4:30 से फिर से मेरा एक क्लास है। चलो, तो यहाँ पर तुम सब लोग एक बार ये सारे चीज को ट्राई करोगे। मैं एक बार सब कुछ बोल देता हूँ। df.drop ना मतलब ड्रॉप ऑल कॉलम दैट कंटेन null वैल्यूज, तो वो सारे कॉलम को ड्रॉप कर देगा जहां पर कोई null वैल्यू को मिलेगा, ठीक है। ड्रॉप ना access one thrash n, drop all rows have less than a non null value देन इन नॉन नल वैल्यू, मतलब अगर कोई कलम है मेरे पास, ठीक है, रो को भूल जाओ, मेरे पास मान लो तुम्हारे पास कोई कलम है, ठीक है, उस कलम में तुम्हारा 10 नल वैल्यू है। 10 नल वैल्यू को क्या करोगे, अगर तुम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट किया, अगर क्या हुआ 10 नल वैल्यू होगा तो डिलीट कर दो। अगर उस कलम के अंदर नल वैल्यू 1 या 2 होगा तो मत डिलीट करना, ठीक है। ये समझ आया। मेरे पास एक डेटा फ्रेम है या टेबल है जिसके अंदर मेरे पास एक कलम है, जिस कलम के अंदर मेरा 50 डेटाज है, ठीक है। उस 50 डेटा में अगर मैं एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करूं, अगर यहाँ पर ज्यादा के ज्यादा वैल्यू नल है, मतलब मे बी 30 वैल्यूज आर नल, तो तुम डिलीट कर दो। अगर 30 वैल्यू से कम होगा तो तुम उसको मत डिलीट करो।
तो ये रह गया कंडीशन। चलो फील ना x रिप्लेस ऑल नल वैल्यू विथ x। तो x वैल्यू से अगर तुम यहाँ पर x कोई वैल्यू यहाँ पर सेंड कर दोगे या सेट कर दोगे, तो जहां पर नल वैल्यू मिलेगा फील ना क्या होगा, वो फील कर देगा। एस डॉट फील ना एस मीन मतलब होगा क्या, तुम्हें जो रो है, तुम्हें रो नहीं बोलेंगे, जो तुम्हारे पास कलम है, उस कलम का अगर कोई नंबर होगा, कोई उस कलम का हम एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज से जहां पर नल वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तुम ये सारे चीज तुम घर पे बैठकर एक जस्ट एक्सेल फाइल बनाओ, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज रखो और मैं ये जो सेंड कर दूंगा तुम्हें, ये जस्ट एक बार ट्राई करो, तो तुम्हारे पास क्या होगा, पूरा आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, तुम देख सकते हो, या मुझे भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसको ये जितना हो व्हाट्सएप सके में सेंड complete करेगा करेंगे। या मैसेज में सेंड करेगा? चलो व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, ठीक तुम है, बोलोगे तो। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा फिर से रिप्लेस है, रिप्लेस सर वन मेल कॉमा मेल कर दीजिए ना सर, मेल हम लोग का वो पीसीएस ग्लोबल का आईडी में। नहीं सर, यहाँ पर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। आई थिंक व्हाट्सएप में दिक्कत सेंड नहीं करने का सबको मिल जाएगा, एक बार ही सेंड करना होगा तो सब हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूं तो मेरा भी बहुत अच्छा होगा। चलो वो बाद में हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक ओके है। सर, तुम लोग ओके। जहाँ बोलोगे, पहले इसको खत्म करने दो, बहुत सारा चीज अभी बाकी है ना। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है, चलो इसको बाद फिल्टर शॉर्ट एंड ग्रुप बाय। अगर तुम किसी डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, फिल्टर मतलब कोई वैल्यू है वहां पर, बहुत सारा वैल्यू, एज मान लो एक एज कलम है, तुम चाहते हो अगर जो 18 साल का नीचे होगा, 18 साल का नीचे भी बहुत सारा वैल्यू होगा, 18 साल का नीचे होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टाइपेंड नहीं देंगे, या 18 साल का नीचे जो होगा उसको ही हम स्टाइपेंड देंगे, और ऊपर जो होगा उसको हम स्टाइपेंड नहीं देंगे। मगर हाँ, हम क्लास करने के लिए हम उसको दे सकते हैं। तो हम ऐसे वैल्यू को कैसे मिलेगा, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगेंगे या फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर का कैसे लिखेंगे, df स्लैश कॉलन। कॉलन मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, कॉल मतलब कॉलम का नाम देना पड़ेगा, मतलब एज ग्रेटर देन मान लो 18, ठीक है। तो यहाँ पर देना पड़ेगा, या लेसर देन 18 कर दिया, और तो तब क्या होगा, वो सारे जो वैल्यूज है वो तुम्हें फिल्टर होकर चले आ जाएगा। तुम सिर्फ एक ही वैल्यू को फिल्टर नहीं, तुम 2 या 3 वैल्यू को भी फिल्टर ऐसे कर सकते हो। ये क्या क्लियर हो रहा है? मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ओके सर, अगर मेरे वन पास मोर ऐसा न्यूमेरिक डेटा होता मैं जरूर दिखा देता। ठीक है, चलो कॉन्टैक्ट है मेरे पास, चलो कॉन्टैक्ट গুগল থেকে কারের স্ট্যাটিস্টিক্স নামিয়ে নিয়ে लगेगा। अबे टाइम लगेगा, मेरे पास उतना अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तुम तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम सारे लोग ये वाला चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये वाला अगर नहीं काम करेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा चीज को सॉल्व आउट करके रखूंगा, ठीक है। सबको और एक बार दिखा दूंगा, ओके ओके सर, ठीक है। one thing in the हाँ बोलो। filter, हाँ in हाँ second line है, यहाँ पर 3 वैल्यू करना है, तो कॉमा दे के लास्ट में एंड यूज करना है। सपोज यू सेड यहाँ 3 पर वैल्यू, हाँ सपोज ये यहाँ पर मल्टीपल, एंड देना होगा, यहाँ पर एंड देना होगा, तुम्हें जितना भी करना होगा यहाँ पर एंड देते जाना ओके होगा। ओके, दैट मींस थर्ड वन ठीक है, वुड बी सेपरेटेड बाय एंड। यस, थर्ड वन फिर से ऐसे, ये वाला एक कंडीशन हो गया, ये ओके वाला एक कंडीशन हो गया, उसके बाद फिर से एंड, क्योंकि ओके ओके, जैसे हम एंड ऑपरेशन करते थे, यहाँ पर भी एंड ऑपरेशन यूज होगा, ठीक है। थैंक यू। चलो अगर हेलो तुम सर। कोई वैल्यू को, हाँ बोलो। सर मेरा एक डाउट है, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो फिल्टर सॉर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर सर हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही सिर्फ सॉर्टिंग कर पाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट हो और फिर अल्फाबेट क्या बोलते अल्फाबेट हो? जैसा कुछ? ये शॉर्ट वैल्यू हाँ टू कॉलम 1 इज असेंडिंग होगा। असेंडिंग कब नहीं होता सर, है? मेरा क्वेश्चन एक ही कि मतलब कि अगर मान लीजिए हम न्यूमेरिक वैल्यू छोड़ के और कुछ अगर वैल्यू ट्राई करना चाहते हैं, टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप डाटा अगर होगा तो सॉर्ट कर सकते हैं या नहीं, यही पूछ रहे हैं ना? সবকিছুই হবে, যদি हाँ, ক্যারেক্টার হয় তাহলে A to Z হবে, A to Z করে করতে হবে, मतलब वो फर्स्ट वाला जो नंबर है A B C D E F वो ऐसे करके करेगा। So excuse me for interrupting. I think Saurav's question is in the place of 0.5. We can use A, B, C, something else. Just one second.
সবকিছুই শর্ট হয়, যদি সংখ্যা না থাকে, যদি ডিজিট না থাকে তো ক্যারেক্টার গুলো শর্ট হয়, A to Z or reverse করলে Z to A. Okay, then the sort method would be in place of 0.5. Can we replace A, B, C something else? Yeah. हेलो Okay. हेलो हेलो, आई एम सॉरी। Hello. हाँ बोलो, Yes. आप बोलो। हाँ Okay, I was talking about the Saurabh process. I think Saurabh want to know that in place of 0.5, can we use A, B, C something else? ये And यहाँ पर क्या हो voice is not coming. Hello, Sir, you are not audible. Saurabh, আমি কি তোর কোশ্চেনটা ঠিক বলেছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই হবে। শুভঙ্কর অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে। Sir, your voice is not coming. Not audible. यहाँ पर कॉलम दे देते हैं कॉन्टेक्ट, इसका नाम है वेल था, वेल और इसका वैल्यू को मैं, ठीक है, इसको ये शॉर्ट हो गया, देखा 12, 23, 45, 56, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 05, इसको हम 200 कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखो ये वैल्यू चले जाएगा, ठीक है, या 100 कर देते हैं तो और भी अच्छा होगा, अच्छी समझ में आएगा। अब चला गया है, देखिए तो कांटेक्ट का जो वैल्यू है, ये जो कांटेक्ट का वैल्यू है, ये सारा वैल्यू जो 100 से जो वैल्यू नीचे होगा उसको क्या करेंगे, हम निकाल दे रहे हैं। अगर इसका इसको मीनिंग हम कर रहा है ग्रेटर देन हाँ कॉन्टेक्ट का वैल्यू। ग्रेटर देन ना, अगर कोई वैल्यू, इसका जो वैल्यू है, कांटेक्ट का जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर होगा तो हम रखेंगे, अगर नीचे होगा, अगर ऐसे करेंगे ये चेंज हो गया, देखें क्लियर। अगर इससे ज्यादा हम ये भी कर सकते हैं, मान लो ये रहा, एंड और एंड ऑपरेशन कर लेते हैं, एंड कंट्रोल सी कंट्रोल बी, एरर आ गया, आई थिंक ये 200 से ज्यादा होगा, ये 100 से नीचे ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिखा, क्या दिखा रहा है, ट्रूथ अबाउट, अच्छा यहाँ पर 1 2, सर ब्रैकेट दें। हाँ रुक जाओ, हो गया, ये क्या कंडीशन आ गया, समझ गए, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे करके करते करते हम धीरे धीरे जाएंगे, हम शॉर्ट को भी ट्राई करेंगे, हम ग्रुप बाय को भी ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीवॉट टेबल कैसे बनाया जाता है, तो आर्गुमेंट पास करके, मीन करके, इसको भी हम देखेंगे वन बाय वन। और पहले हम देख लेते हैं, और जो बाकी का चीज है हम थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमें और भी समझ आएगा। df.append, append क्या होगा, append करेंगे मतलब add the row in df1 to the end of the df2, column should be identical, मतलब क्या होगा, column should be identical, जो कलम होगा वो identical मतलब एक होना चाहिए। add the rows in df1 to the end of the df2, rows को हम क्या करेंगे, rows मतलब क्या है, चलो इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रोज को हमें ये वाला रो
ये दो रो अगर हम ऐड करना चाहते हैं इसके साथ, तो क्या होगा, हमें आइडेंटिकल होना चाहिए। ये फर्स्ट नेम और ये इसका फर्स्ट नेम, ये वाला जो डेटा सेट है इसका फर्स्ट नेम, और ये वाला जो डेटा सेट है इसका जो वैल्यू है, एट्रीब्यूट है, उसका नाम सेम होना चाहिए। तो ऐसे अगर सेम हो जाएगा तो क्या हम यूज कर सकते हैं, हम अपेंड वाला फंक्शन, अपेंड वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, df1 क्या है, df1 मेरा एक डेटा सेट है, df2 क्या है, df2 मेरा और एक डेटा सेट है। अगर मुझे रोज को ऐड करना होगा, रोज मेरे पास 1 to 10 तक रो है और 11 से 20 तक रो अलग जगह में है, अगर उसका एट्रीब्यूट्स का नेम सेम है तो हम अपेंड करके ऐड कर सकते हैं। pd.concat concat इसका मतलब है add the column in df1 to the end of the df2। मतलब क्या है, df1 मैंने जैसे बोला क्या, स्टूडेंट है, स्टूडेंट ईमेल आईडी है, और एक है एड्रेस और एक है फोन नंबर। इन दोनों को मैं अगर एक करना चाहता हूँ तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। वहां पर क्या होगा, रोज शुड बी आइडेंटिकल, रोज एक होना चाहिए। ठीक है, df1 डॉट ज्वाइन df2 कॉमा नॉन कॉल 1, मैं इसको बोलता हूँ SQL स्टाइल ज्वाइन द कॉलम इन df1 with the columns on df2 where the rows for column have identical value, how can be 1। मतलब क्या है, मेरे पास जैसे बोला था स्टूडेंट, मेरा दो डेटा सेट है, हम एक कॉलम कॉमन रखेंगे, दो में ही स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी कॉमन रखेंगे, उस आईडी को मिलाकर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइनिंग कैसा होगा, जैसे हम एसक्यूएल में पढ़े थे, हो सकता है इनर ज्वाइन होगा, हो सकता है तुम्हारा आउटर ज्वाइन होगा, हो सकता है वो लेफ्ट ज्वाइंट है, राइट ज्वाइंट है, ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट, इनर ज्वाइंट, ये सारे चीज। उसके बाद स्टैटिस्टिकल पार्ट, स्टैटिस्टिकल पार्ट में हम बहुत इजीली डिस्क्राइब करके हम दिखा चुके हैं क्या क्या आ रहा है, मीन आ रहा है, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड। अगर यहाँ पर देखेंगे और एक बार पीछे जाएंगे, यहाँ पर जो कलम हमें मिल रहा था, यहाँ पर काउंट कितना बार काउंट आ रहा है, कॉन्टैक्ट काउंट कितना बार आ रहा है, मीन मतलब मीन वैल्यू क्या है, एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सब चीज मुझे दिखा देगा। मीन वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कोई एक कलम है, नंबर है, उसका मीन अगर निकालना चाहते हैं तो वहां पर मीन हम निकाल सकते हैं। कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन, कोई डेटा से कोई डेटा का और एक डेटा से कितना कोरिलेशन है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। कोरिलेशन का वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। हम काउंट कर सकते हैं, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन वैल्यू वेरिएबल इन ईच डेटा फ्रेम। मैक्स मतलब कोई एक मेरे पास ऑलरेडी एक कलम है, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, उस कलम के अंदर सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं, और मैक्स करके मैक्स का वैल्यू से हम देख सकते हैं मीन का जो एवरेज वैल्यू है, इसका कितना डिस्टेंस है। ये सब चीज हम स्टैटिस्टिकल में जब हम जाएंगे वो सब पढ़ेंगे तब कर सकते हैं। DFSTD मतलब रिटर्न द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच कॉलम। स्टैंडर्ड डेविएशन तुम आई थिंक सो जानते हो, बहुत सारे लोग कौन कौन स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट उनको पता है? ये पढ़ा चुका है स्टैटिस्टिक्स में, देखने में ये याद है कि कौन पढ़ा है? ये तो पढ़ा है सर। अच्छा फाइन, ये ऐसे सब कुछ पढ़ा हुआ लेकिन सब रिकॉल करना पड़ेगा सर। हाँ, रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तो ओके कोई बात नहीं। सब लोग को रिक्वेस्ट होगा एक ही बात, तो तुम सब लोग एक बार करके ये जो स्टैटिस्टिक का पोर्शन है एक बार जस्ट रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर जो चीज आज नहीं हुआ, बहुत सारा चीज आज नहीं हुआ क्योंकि आज 4 बजने वाले हैं, मुझे अभी भी लंच नहीं हुआ। मैं थोड़ा लंच करके मेरा 4:30 बजे से क्लास है, मैं फिर से कराऊंगा। तो आज नीलांजन सर का भी क्लास था, तो इसलिए तुम्हारा थोड़ा 5-10 मिनट कम पड़ा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप में। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं उसको सेंड कर दूंगा। सर, एक कोरिलेशन वाला की बाद में आएगा। कोरिलेशन हाँ, कोरिलेशन आएगा, सब कराएंगे। कोरिलेशन, कोवेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हाँ कोवेरिएंस क्या बोला, हम जब कराएंगे सब कराएंगे। जस्ट वेट करो, अभी बोलेंगे तो अभी नहीं समझ आएगा। बहुत सारे यहाँ पर लोग है ना, कोवेरिएंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, हीट मैप। सर स्टैटिस्टिक्स में अभी कौन सा पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को स्टैटिस्टिक्स कुछ पता नहीं है सर। कोई बात नहीं, हम कराते जब जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है,
जो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मुझे तो उतना मैथमेटिकल टर्म नहीं पता है, मगर मुझे क्या पता है मीन मीडियन मोड, ये सारे चीज के ऊपर भी एक चीज है। जब जब कोई किसी को मैं पूछता हूँ ना स्टैटिस्टिक्स, वो बोला हाँ मीन मीडियन मोड, नहीं यार मीन मीडियन से ऊपर भी चीज है, पी वैल्यू है, जेड स्कोर है, टेस्ट स्कोर है, उसके बाद बहुत सारा चीज है हम देखेंगे। हम लोगों उसके को बाद मीन हम वैल्यू भी पता कंडीशन, है। हाँ उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये भी चीज तुम्हारा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में जा रहा है जब हम देखेंगे, क्योंकि हम अगर कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a by b शायद ऐसा होगा। हाँ वही, जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, जब हम थोड़ा वहां से स्टैटिस्टिक्स कैसे वहां से निकालते हैं वो सब देखेंगे, क्योंकि अगर तुम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखोगे तो वहां पर जो एंडिंग पोर्शन है, कितना पोर्शन उसके अंदर है, कितना पोर्शन इसके अंदर है, ये सब चीज दिखाने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज हम जब कराएंगे, नीलांजन सर सबसे बढ़िया बात है, नीलांजन सर तुम्हारे पास है वो 10 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है। हम तो रहे परदेसी, 1-2 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, तो हम तो रहे परदेसी। आप भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मगर नीलांजन सर से सीखो। अच्छा, हाँ बोलो। एक बात बोलना था कि जो क्लास हो रहा है ना सर, सैटरडे को मत रखिए सर। नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोई भी सैटरडे को नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा मीटिंग आईडी का प्रॉब्लम था, कुछ दिनों से नेटवर्क का इशू था, अब मोटा मोटी सब सॉल्व हो चुका है। शायद मैक्स ऑफ जो है वो लंच भी ठीक से नहीं किया, आप भी नहीं किया, इसलिए हाँ सैटरडे हमारा काम है ना, लंच के लिए एटलीस्ट 1 आवर चाहिए। राइट, मेरा अभी लंच नहीं हुआ, मेरा 4:30 बजे से और एक क्लास है, इसलिए मैं आज तुम सभी लोगों को कुछ देर के अंदर विदाई बोलने वाला हूँ, मतलब बाय बोलने वाला हूँ। স্যার পিসিএস এ কি সোম থেকে শুক্র ক্লাস এক কাজ হয়, এটা সোম থেকে শনি কোম্পানিতে, পিসিএস কোম্পানিতে। यहाँ पर आलोक सर है, आलोक सर से पूछ लो। सर को हाय बोलो, आलोक सर है इधर। Sir, one more request. I know that just maintain करना कि टाइम में होना, मतलब मंडे को और फ्राइडे। तो हाँ नेक्स्ट टाइम से क्या हम लोगों को भी आसान होगा, आपको आप लोगों को भी आसान होगा। एक बात है सर, सैटरडे को मत रखिए, लेकिन सैटरडे को नीलांजन सर की भी क्लास होता है, आपका भी होगा, फिर रात को भी क्लास है। नहीं रखेंगे नहीं। ये तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ये तो आज का हो गया, नेक्स्ट वीक से ऐसा कोई भी झमेला नहीं होगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो मैं आज को क्लास को यहाँ पर एंड करते हूँ। तुम लोग सर ये सेंड कर दीजिए। तो सर मंगलवार दिन দেখা করছি তো আমরা। হ্যাঁ আমরা মঙ্গলবার দিন দেখা তো রাতে দেখা কর ভাই। হ্যাঁ মানে স্যার ক্লাসটা আজকে সারা রাত হবে, সারা রাত স্যার বলছিল আজকে ইন্ডিভিজুয়ালি ডাটা সায়েন্সের ক্লাস হবে স্যার। हाँ ये रुक जा तन्मय बोलो। Yeah, like I have some doubt regarding this data set on the commands. So आप शाम तक पूरा free हो जाओगे so that I can just share my screen. Actually, I don't have my laptop right now, so I'm just doing those things into my friend's laptop. So if you are able to free, so that I am just sharing my screen, just see the things whether in which line it was not execute, like the command is not taking at that time. So I don't know why. तुम अभी दिखाना चाहते हो? अभी तो एक्चुअली नहीं है, शाम तक आएगा फ्रेंड। मैं आपका पिंग करूंगा उससे पहले, अगर फ्री रहोगे तो आई विल एक काम कर सकते हो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा, कल मैं पूरा फ्री हूँ, कल तुम्हारे पास टाइम होगा तो कल देखे, क्योंकि इसके बाद मेरा क्लास है, उसके बाद सोमू सर का क्लास है, उसके बाद रात को तो आलोक सर के साथ बैठेंगे, तो मेरा पूरा दिन कल बैठे। कोई नहीं, श्योर मैं बस बोल दिया आपको पहले ऐसे। हाँ तुम सिर्फ मुझे एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, सुबह में या सुबह में एक बार कॉल कर लेना 10 बजे के राउंड 10 बजे, तो मैं तुम्हारा कॉल रिसीव करके मैं बोल दूंगा। ठीक है, ओके श्योर। লাস্ট বল। হ্যাঁ বলো। স্যার আজকে সকালে নীলাঞ্জন স্যার একটা বলছিলেন ফর লুপ যখন পড়াচ্ছেন, তো আপনিও কোশ্চেনটা বললেন দেখুন। নো কমেন্টস। আই যখন আই ফর সরি अच्छा ठीक है सर, आज के दिन था। आज का सर के छेड़ दे। उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। स्क्रीन को देखो,
Can you see the syntax? Yes. Yes, sir. Yes. Can you see the syntax? Yes, sir. Set the sequence and And our class यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। Thank you sir. Any doubt? ठीक है सर। তর্পণ দা? No doubt. Okay, let's. ओके बाय স্যার सर। স্যার একসময় স্যার জেনারেটর ডেকোরেটর এগুলো তো দেখেছেন না, ইটারেটর হ্যাঁ হ্যাঁ দু তিনটে জিনিস। শুভঙ্কর খেতে দিবি কি খেতে দিবি না? হ্যাঁ আমার এখন মনে ভাই পড়লো। ছেড়ে দে আজকে। ठीक है, दिखा देंगे वो मंगलवार भी दिन जा दिखा देंगे, डाउन कोई करा जा আমি তো চুপচাপই থাকি, আমি তো জ্বালাই না, আমি তো चुपचापी থাকি না। ठीक है, मुझे आलोक सर को कॉल करने दो, नहीं तो सर आई थिंक दूसरे काम में बिजी है, उनको बोल देते हैं जस्ट। ठीक है सर, मंगलवार दिन सर। हाँ 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 ठीक है। আরে এক মিনিট স্যার যদি আসে তাহলে জিজ্ঞেস করে নেবে যে আজকে 7টা থেকে হবে না একবারে 12 PM থেকে হবে, হ্যালো তাহলে একটু হ্যালো ঘুমিয়ে নিতাম তাহলে। স্যার ইজ হিয়ার। প্রশান্ত, हाँ सर हाँ सर বলো তোমরা কিছু বলছো মনে হয়। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে আজকে স্যার 7টা থেকে না 12টা থেকে হবে ওটাই। আজকে 7টার সময় তো সৌম্য স্যারের সেশন আছে, সৌম্য স্যারের প্রজেক্ট নিয়ে হ্যাঁ একদম ঠিক আছে ঠিক আছে ওটাই প্রজেক্টটা জানাচ্ছি। সময় লাগবে একটু শেপে আসতে, ওটার কোনো স্যাম্পল ডেটাটা দেওয়া হবে। সেকেন্ড হলো ওটা নেক্সট যে কাজটা তোমাদের করতে হবে, রাত্রে থেকে আজকের থেকে আমাদের ডেটা সায়েন্সের জন্য সেপারেট ইউটিউব চ্যানেল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি চাইছি তোমরা দেখো নিজেদের মধ্যে দেখো, আলটিমেট আমি তোমাদের একটা স্টোরি বলি। আমি আমার কেরিয়ার ফার্স্ট কোম্পানিতে যখন কাজ করতাম তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের কেউ আমার যাওয়া শেখানো ছিল না। আলটিমেট প্রথমে আমি কয়েক মাস কাজ করেছি, তারপরে আমাদের বস আরো 2-1 জন বন্ধু এনে দিয়েছে, তারপরে আলটিমেট আমরা 3 জন বন্ধু হয়ে গিয়ে আমরা নিজেরা বইপত্র নিয়ে কাজটা করতাম, নেট পাওয়া যেত না। আমি চাইছি আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল, দেখো এখানে সুবিধা কি, এটাকে কোম্পানি থেকে ইউটিউব চ্যানেল, জুম চ্যানেল, সেক্ষেত্রে তোমাদের কন্টিনিউয়াস তোমরা কাজ করতে পারবে। কেউ ব্যাঙ্গালোর আছো, someone in Bangalore, someone in Kolkata, someone, all of you can together work with a separate Python another Zoom meeting channel, and you spend one day in week dedicatedly. Okay, what will be the result? Result will be all of you will be able to work in a project. So many activities will happen. Earlier, what was the problem? After 1 hour, we are going to release you. Python team, we are going to release. But today onwards, we are going to start a separate meeting. Okay, all of you work together. In PCS Global, what PCS Global can give you, PCS Global gives you a good platform, and you utilize it, and you can be skilled, you can go for very big job, and I want to see all of your success. Okay, I have a very limitation capability, but God has given it the opportunity to create a platform for freshers. All of you started here, and all of you grow together. And since we are creating the office channel also, and all of you work together and spend one day, okay, much more, you stretch also and work together in a project also. You can do many more things. Today morning, Nilanjan sir also given a project, I think. A project started. He is planning to give a project. And so all of you do work on the projects. Okay, got my clear message, all of you? Yes sir. Okay, it will be benefit. All of you will be it's like a it's a in Durga, actually it's Ma Durga. It's a, when come to he's with a 10 weapon in 10 hands. Okay, and actually what company expects in whatever the, even in this year, in this type of situations, till there is a market demand is a job, and those are the skill, those are the efficiency, they do not have lack of job, they are getting the job in this market. So here, to get the job, what is required? One is required experience. You are getting experience from here. One is required, if you go to any place, they will ask, have you done any project? So you do a project. All of you work together. Okay, whichever, it is a wonderful opportunity. Tanmay is in Bangalore, Prashanta is in Kolkata, okay, someone is in Asansol, someone is in Odisha. All work together and burn your hand with a project. So if you go to any place, they will not tell that it is an institute, you have work with a project. So you have efficiency in the project. Next, if you are the troubleshooting, whenever everybody has some limitation, you have a problem, you are not able to do these things. And this is the way I want to step by step progress, another dedicated channel, and all of you do troubleshooting. I have less capability in this area. So all of you become masters and all of you do work together. Okay, I will be also active full night in same room. Actually, in my room, 2-3 laptops I am setting up,
Okay, one laptop will be actually 3 laptops are going to set up. One laptop will be in for Java, one laptop will be Zoom channel for Python, one laptop is being ready for PHP and mobile apps development. So all team will be working dedicatedly under my monitorship. So it will be a really wonderful opportunity, and I am also spending big money for Zoom. Okay, so all of you utilize it. Okay, what is your suggestions? What is your idea? This idea is good or it is painful? No. It's Definitely, sir. It is a good idea. Very good, idea, sir. sir. Very good. And gradually, and if you do the good work, and again I am also involving some seniors also. Okay, and if you able to showcase next day, 1 minute, I am getting a call. Just 1 minute. হ্যালো, প্রশান্ত দা কি থাকছে? স্যার আছেন? Sir, can you hold actually just 1 minute? I'm conclusion in another training. Okay, just 1 minute. I'm conclusion. Huh? So, you can hold or I am calling back. So what is the planning? And all of you utilize this platform and make this platform very bigger. Even I am going to create today a dedicated channel for Prashanto. What are the trainings are providing by this data science team? These will be in YouTube also. Okay, a private channel of the out. So sometimes you will be utilize it, and who have already today's learner, they can also able to view multiple times. Understand? So, and all of you come back to me and how you can improve the things, and all of you another things, what are the activities is happening, you spread it in your network, in your Facebook, in your LinkedIn, in your network actually, so that more people can come to know. Because of the only one company in India creating platform for freshers. Okay, no one want to give the opportunity for freshers. Okay, but here we open our door for freshers. Start, come and okay, be experienced and go for better opportunity. Okay, I all of your support. Okay. Yes, sir. And another things I want to tell, another good news to all of you. A dedicated data science, 14 people are coming. 14 people are coming for business analytics training from IEM college. It has been completely scheduled, and this team will provide the training. And I am also planning a data business analytics training. And some of you know R programming. Any of you? No, sir. Actually, it will be Python, but let me planning it, and business analytics training. So all of you have to go to a big 14% teams are coming. And last year we have done the training. It was really successful. And again, those students are coming, okay, with the faith, and their HOD has sending. Okay, I have a strong confidence upon you. You will be carry on this. Okay, so here this company, I have another plan. I have another plan to jump into the development project scenario. I am just testing all of your confidence and motivations, okay, and changing the one after one level. Okay, so this level, and use the Zoom today night. That is another level. Next, I am going to start the bidding accounts also in another level. And here project development training, everything will do. And we will create the employment for freshers across India. Okay, and need all of your support for that. I think all of you do not want to see that your friends, they are also struggling, not getting startup. Okay, we want to give the startup for everybody in India. Yes, sir. Okay. Yes. Thank you for good you, sessions. Okay, we are closing. Sir, Thank you, sir. can Thank I you, say sir. something about? Sir, Yes, this has been recorded. I have seen. If you kindly send, then it will be helpful to us. This session. Yes, I am just after sessions. I am uploading in YouTube. Okay, thank you, sir. Okay, just after স্যার session. যদি কোনো প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু বানানো যায়, তো আমার পক্ষে মনে হয় যে মানে খুব ভালো হবে। এটাই তো চেষ্টা করা হচ্ছে। দেখো, প্রোডাক্টিভ বানানো শুধু নয়, প্রোডাক্টিভ ডেভেলপমেন্টে কাজকর্মে লেগে দেখো, এটা এমন একটা জায়গায় করতে চাইছি। এবং আমি আমার অফিসটাকে তোমরা একটু তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি ছবি পাঠিয়েছি, তোমরা যে ট্রেনিং হ্যাঁ স্যার, দেখলাম স্যার। It is a wonderful environment has been created, boss. Okay. At present, I have 4 laptops with me. 4 laptops with one for teachers, another personal 3 laptops, another laptop will come, and okay, this is a dedicated environment has been set up here. It is like a war room I have created. And here you using PV also. আমরা চাই যে এটা খুব ভালো হোক, ভালো কিছু তৈরি হোক, প্রত্যেকে চাই ভালো কিছু হবে। তোমার এখানে 1000 ছেলে মেয়ে যদি কেরিয়ার তৈরি হয়, তোমাদের তোমরা দেখেছো তাদের কেরিয়ার,
Okay, so all of you will be in next level of opportunity. Okay, কাজ করো, মনের আনন্দে সবাই কাজ করো, কাজ পাগল হও, লাইফে সবকিছু হবে। Yes, sir. ওয়ার্ক ইজ লাইক পূজা। একদম। Okay. Okay, sir. Thank you, sir. I'm okay, who is the moderator host? Actually, you can stop the sessions. You can stop the sessions. I am not host. Who is the host? Stop the Sir, so our next session is on 7 p.m. Next session is 7 p.m. Okay. Okay, sir. Okay, thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Hello. Sir, sorry, আপনাকে একটু কলটা থাকতে হবে। Hello, শুনতে পাচ্ছি স্যার? Am I audible, sir? Yes. Actually, there is a small session is running. Actually, it was not taken by me, but it was. Okay, leave everyone. भाई लीव ने भाई लीव ने चल leave. Can I leave, Chandrasekhar? Yes, What yes, do you, of course. what is your order? Yes. Okay, leave. Actually, is that? Yes. You, I understand that the things interconnection lost, and Okay. so I am also providing. Okay. Unfortunately, I survive here. Just my locality in where I am actually, there is no problem with electricity even. But just last few days, enter this period, 2 days, just I got the broadband connection. But the entire this period, I was not impacted because my Jio was working very fine. Okay, so I survived to able to do the all trading, all office activities using Jio. These last 10 days actually. The rest actually, what are the problem happens in my surrounding also. There is a problem with the electricity, and also many. If you kindly confirm the another date. So another date, actually, one things we can always Saturday is my suitable date. Okay, and Saturday, next Saturday we can plan. Next Saturday means there is actually other working day. I already told that actually there is no surety. Generally, it is not busy, but if anytime you already schedule every students and authorities, and they are waiting, and half an hour ago I told I am some due to meeting. Okay, but I do not can predict actually. That is the happen actually, since I mean others. you are talking about the 6th June, no? Next Saturday. 6th June. So 6th June I can plan. Okay. Yeah, 6th June. So sir, I am sending you another mail, and if you kindly give us a confirmation, yes. I will send it to the admin department, and they will contact with you how this process can be conducted. Yes, 6th June is okay for me. Okay, sir. I am sending you the another mail confirming that 6th June will be conducted. স্যার এখানে একটু জানতে চাইছি, এটা মানে আপনি মানে কোন ইয়ারের স্টুডেন্ট বা কারা করবে যদি টার্গেট? জেনারেলি ফোর্থ ইয়ার তো এখন থাকবে না, জেনারেলি থাকবে হচ্ছে আমাদের থার্ড ইয়ার, আর আমাদের থাকবে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ার। আচ্ছা, ফোর্থ ইয়ার তো তারা তো এখন ফাইনাল ইয়ার মানে সেমিস্টার হয়ে গেছে, তাই তো? ফোর্থ ইয়ার প্রায় ধরুন গভর্নমেন্ট থেকে মোস্ট প্রবলি ধরুন ওই জুলাইতে হয়তো ওদের পরীক্ষাটা এক্সামটা কন্ডাক্ট করা হবে, তো ওরা তো এখন আপাতত টাইম দিতে পারবে না। না, ওদের এমনিতে ওদের তো এবছর আপনার মোটামুটি যারা ক্যাম্পাসিং আগে হয়ে গেছে মোটামুটি সেগুলো আপনাদের টিসিএস এর ছুটিটা প্রায় অনেকগুলো পেয়েছে। আর টিসিএস এ দেখুন অ্যাকচুয়ালি আরেকটা জিনিস আপনাকে বলবো, একটু আমার পার্সোনাল এতে আমি এটা নিয়ে প্রচুর, আমি গত বছর আমাকে ইউএম কলেজ নিয়ে গেছিল আমাকে, শুধু মানে সেটার ইম্প্যাক্টটা এত কিছু হয়েছে, মানে শুধু তাই নয়, আমি ইউএম এ গেছিলাম, সঞ্জয় গুপ্তা স্যার ছিলেন, 300 ছেলে মেয়েকে উনি করেছিলেন ওদের অডিটোরিয়ামে আমাকে জাস্ট একটা, আমি দুটো জিনিস করেছিলাম যে আমাদের কিভাবে আমাদের হোয়াট ইজ এক্সপেকটেশন অফ দ্য টিসিএস and what are the area they can prepare, আর সেটার একটা গাইডলাইন এবং হোয়াট আর দ্য এক্সপেকটেশন অফ টিসিএস, আর একটু মোটিভেট করা আর কি, সেটা আমি করেছিলাম। কিন্তু আমি সারপ্রাইজ কিছু ছেলে মেয়ে ওদেরকে আমি বলেছিলাম যে এখনকার দিনে কোম্পানি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার চাই। আমি অনেকগুলো ছেলেকে পেয়েছি যারা অ্যাকচুয়ালি ওই সেশনের পরে তারা
মানে ডেভেলপার হয়ে গেছে আর কি। এটা একটা মানে শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে একটা ছেলে লিঙ্কডইনে আছে, মানে ও ওই সেশনে ছিল। পরে আমার সঙ্গে বলছে, স্যার আমার এই সেশনটা আমার লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে। কেন, কি হয়েছে? আমার সঙ্গে একদিন টিসিএস এ দেখা করতে এসেছিল। কি হয়েছে, মানে ছেলেটার নাম সৌম্যজিৎ অধিকারী মনে, ও এখন এই লিঙ্কডইনে এত সেশন করে না, এবং ও মানে ওই হইচই অ্যাপের যারা ডেভেলপমেন্টে ওখানে কাজ করছে, ও এখন 1000-200 টাকা করে মাইনে পায়। থার্ড ইয়ারের ছেলে, ও যে পুরো জাভা ডেভেলপার হয়ে গেছে, প্লাস হচ্ছে ও আর্নিং করছে, প্লাস হচ্ছে ও এত ভালো এফিশিয়েন্ট, মানে ওই সেশনটাতে ছিল। ওদেরকে আমি একটা গাইডলাইন দিয়েছিলাম যে তোমরা এরকম করো, একটা ফুল স্ট্যাক রোড ম্যাপ, হোয়াট ইজ দ্য রোড ম্যাপ ফর ফুল স্ট্যাক জাভা ডেভেলপার। সেটাই একটা ইম্প্যাক্ট। আর এছাড়া আমি প্রচুর কলেজে, তা এখন যেটা হচ্ছে সব বাইরে থেকেই সব কলেজের কমিউনিকেশন হচ্ছে। আমি কিছু কিছু উইকেন্ডে করি আর কি। এর বাইরে অ্যাকচুয়ালি চেষ্টা করা যে কোনো জায়গায় ছেলে মেয়েদের একটু মোটিভেট করা, ওরা যাতে শুরু করে। যখন বললেন এটা একটা ভালো সুযোগ আমাদের কলেজের ক্ষেত্রে, আমাদের কলেজ যখন তাহলে রিক্রুটমেন্ট হবে সে তখন একবার তাহলে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো, স্যার আমাদের যারা থার্ড ইয়ার মানে আপকামিং ফোর্থ ইয়ার আর কি, 2021 পাস আউট হবে, তাদের স্যার যদি একটা সেশন নেয়। ঠিক আছে, আমি তো এই আমার এতে লাস্ট ইনভাইটেশন ছিল এতে অরুণাচল প্রদেশে, তা ওখানে সব যাওয়া বলে সব 25শে মার্চে সব টিকিট কাটা ছিল, কলেজ থেকে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিল, সে সব ক্যান্সেল হয়েছে। আবার কবে কি হবে, ওখানে ছিল আন্দামানেও অনেকবার, মানে আমি অনেকবার গিয়েছি আর কি আন্দামানে, ওখানে একটা কলেজ আছে। আমার চেষ্টায় একটা আর একটা জিনিস আমি করছি, আপনাকে বলে রাখি, এই কালকেরই আছে, প্রত্যেক সপ্তাহে আমি, দেখুন এগুলোতে ছেলেমেয়েদের যদি একটু উপকার হয় আর কি। আমি নিজে জাভা ডেভেলপমেন্ট এতদিন কাজ করেছি, আমি একটা ওপেন ওয়ার্কশপ টাইপের করছি সানডে করে, যে কোনো ছেলেমেয়েরা ওরা করতে পারে, মানে পার্টিসিপেট করতে পারে। এনিবডি ক্যান লার্ন জাভা টেকনোলজি অলসো। পরে আমি পাইথনটা করবো, এখনো জাভাটা কালকে যেমন আছে আর কি, ওপেন সেশন আর কি। এটা চাইলে যে কোনো স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করতে পারে। আপনি যখন তাহলে ওই সেশনটা নেবেন, মানে আমাদের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, তাহলে আমি একটা কাজ করছি, আমি কালকেরই একটা সেশন আছে, আপনি যদি চান আমি আপনাকে লিঙ্কটা ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। মানে ওদিন যেটা সেশন হবে আপনার কলেজে, ওটাতে একটা জাস্ট গাইডলাইন হাউ টু বি। কালকে যেটা হবে ওটা পুরো জাভা ট্রেনিংই হবে আর কি, বলতে টানা 2-3 ঘন্টা ট্রেনিংই হবে কালকে। আচ্ছা তাহলে স্যার পাঠিয়ে দিলে আমি চেষ্টা করব কিছু অনলাইনে। ঠিক আছে, মানে যারা এখানে তো কারোর নেই, অপশনাল, যে কেউ চাইলে জয়েন করতে পারবে। মানে এটা আমার পরেও থাকবে মোটামুটি। আমি দেখুন এখন লকডাউনে ব্যাপারটা, বাড়িতে বসে থেকেও আমি অনেক জিনিস ভাবনা চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে, এক একটা মানুষ এক এক জিনিস করে, তা আমি যদি এরকম এই অলরেডি 4 কলেজের সেশন নেওয়া হয়েছে আর কি, এইরকম সেশন নিয়েছি, প্লাস হচ্ছে যদি আপনিও একটা প্রপোজাল দিয়েছেন, এগুলো যদি উইকেন্ডে করায়, উইকেন্ডে অ্যাটলিস্ট একটা বিজিও থাকলাম। আর আমি আর একটা জিনিস করছি এই লকডাউনে, আমি যেমন আজ স্যাটারডে, আমি আজকের স্যাটারডে ফুল নাইট আমি ডেভেলপমেন্টের আমার টিমকে নিয়ে কাজ করাবো। আমার নিজস্ব স্টার্টআপ একটা আছে, আপনি তো জানেন ওটার নাম পিসিএস গ্লোবাল। বেসিক্যালি ওটাতে ওখানে যত ছেলে মেয়ে, এখন তো সব ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জায়গা থেকে জয়েন করছে, তা ওদের নিয়ে আমি স্যাটারডে করে আমি এটা শুরু করছি। গত 2 মাস হলে শুরু করেছি অ্যাক্টিভিটিসটা এই লকডাউনের মধ্যে। তো এই স্যাটারডে আমাদের শুরু হয় সন্ধ্যে 7টা থেকে শুরু হয়, সপ্তাহে 1 থেকে 9টা চলে, তারপরে আলটিমেট রাত্রে 11:30 শুরু হয়, মোটামুটি 12টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত চলে। এই সময়টা সমস্ত ছেলেরা অ্যাক্টিভেট থাকে, এবং ওদেরকে নিয়ে কার কোথায় টেকনিক্যাল প্রবলেম, ইস্যু